கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होए. இந்த அருமையான பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள் வேளைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். इस अच्छे पवित्र विश्राम दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. மறுபடியுமாக கர்த்தர் நம்மளை ஆராதிப்பதற்கு இந்த வார்த்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். फिर से परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए इस हफ्ते लेकर आया है. இந்த மாசத்தின் கடைசி வாரத்துல வந்திருக்கிறோம். इस महीने के हम आखिरी हफ्ते में आए हैं. கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவராக और வல்லவராக இருந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर कितना अच्छा और भला बनकर हमें रक्षा करके आया சோத்திரம். है. பிள்ளையை தகப்பன் தோளில் சுமந்து கொண்டு வந்தது போல जिस तरह एक बच्चे को अपने पिता कंधों पर उठाकर लाता है, இந்த நாள் வரைக்குமாக इस दिन तक அவரே நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். केवल वो ही हमें उठाकर लाया है. அவருடைய அன்பு எவ்வளவு விலையேற பெற்றது. उसका प्रेम कितना बहुमूल्य அவர் நம்மை है. எவ்வளவு நேசித்திருக்கிறார். उसने कितना हमसे प्रेम किया அந்த है. தேவ நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். उस परमेश्वर की ओर देखें. இந்த ஆராதனை வேளையில इस आराधना के समय में நீங்க எங்களோடு கூட சேர்ந்து படிக்கும்படியாக आप हमारे साथ मिलकर गीत गाने உங்களை நாங்கள் அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். हम आपसे प्रेम से विनती करते हैं. இந்த உலகத்துல பாருங்க தீங்குகள் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது. इस दुनिया में बहुत सारे बुराइयां फैलते रही है. ஸ்தோத்திரம். பலவிதமான கொள்ளை நோய்கள் பெருகி கொண்டு இருக்கிறது. कई प्रकार की महामारियां फैलते रही ஆனால் है. நம்முடைய ஆண்டவரோ लेकिन हमारा परमेश्वर தீங்கு நாளிலே उस संकट के दिनों நம்முடைய में கூடார மறைவில் अपने तंबुओं में தேடி நம்மை சேர்த்து நம்மை மறைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். हमें ढूंढ कर ले आकर हमें छिपाता है. நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர். हमारा परमेश्वर अच्छा அந்த है. ஆண்டவர் நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். उस परमेश्वर की ओर देखें. அவர் பெரியவர். वो महान है. நம்மளை वो பாதுகாக்கிறவர். हमारी रक्षा करता है. தீங்கிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறவர். वो सब बुराइयों से हमें बचाता है. ஜீசஸ். தீங்குநாளில் தம் கூடார மறைவில் தேடி சேர்த்தென்னை மறைப்பார். தீங்கு நாளில் தம் கூடார மறைவில் தேடி சேர்த்தென்னை மறைப்பார். உன்னதத்தில் மறைவாக ஒளி தென்னை பாதுகாத்து உயர்த்துவார் கண்மலை மேல். உன்னதத்தில் மறைவாக ஒளி தென்னை பாதுகாத்து உயர்த்துவார் கண்மலை மேல். மாலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே. காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே. எனக்கு எதிராயோ பாழையும் இறங்கி என் மேலோர் யுத்தம் வந்தாலோ. எதிராயோ பாளையம் இறங்கி என் மேலோர் யுத்தம் வந்தாலோ. பயப்படு எதிராளி நிமித்தமாய் செவையான பாதையில் நடத்திடுவார். எதிராளி நிமித்தமாய் செவையான பாதையில் நடத்திடுவார். காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே. காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே. தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் என் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார். தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் என் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார். இந்த உள்ளம் ஸ்திரமாக திடமாக கர்த்தருக்கு என்றென்றும் காத்திருக்கும். இந்த உள்ளம் ஸ்திரமாக திடமாக கர்த்தருக்கு என்றென்றும் காத்திருக்கும். காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவேன். காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன்
துதியுடன் பாடிடுவே. பரிசுத்தர் 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 என தூதர் பாடிடும் தொனி கேட்குதே. பரிசுத்தர் 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 எனதுள்ளம் பாடிடும் தொனி கேட்குதே. நாம் செபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பு தகப்பனே, हमसे प्रेम करने वाले हमारी प्रेमी पिता, இந்த அருமையான ஆண்டவர் ஓய்வு நாள் வேலைக்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். इस अच्छे विश्राम दिन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं. ஏசப்பா, இந்த நாள்ல எங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம். इन दिनों में आपके पवित्र चरणों में हम अपने आप को दीन करते हैं. கடந்த வாரம் முழுவதுமாக पिछले हफ्ते पूरा தீங்கு நாளில हमें बुराई के समय உம்முடைய पर கூடாரம் மறைவில் வைத்து எங்களை பாதுகாத்தீரே. आपने अपने तंबुओं पर रखकर हमें छिपा कर रखा. இந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்தீரே, உமக்கு நன்றி தகப்பனே. और इस हफ्ते हमें लेकर आया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते ஏசப்பா, हैं. இந்த ஆராதனையை நீங்க முழு பெருப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக செபிக்கிறோம். इस आराधना को आप ही परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए. எல்லா தடைகளை ஆண்டவர் உடைக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். सारी रुकावट को प्रभु आप तोड़ दीजिए. ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரம் இந்த ஆராதனை வேளையில உயரும்படியாக நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்தி துதிக்க கிருபையில கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். केवल आपका नाम ही इस आराधना के समय ऊंचा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. எல்லா நாவுகள் உமக்கு முன்பதாக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஐயா நீர் ரட்சகர் என்று சொல்லுமே. आपका परमेश्वर सभी का जो जीव आप ही जीवित परमेश्वर करके कहेंगे. எல்லா முழங்காலும் உமக்கு முன்பாக முடங்கணுமே. सारे घुटने आपके सामने टिकेगा. அப்படி நீ செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ऐसे आप कीजिए. ஸ்தோத்திரம், இந்த ஆராதனையில உம்முடைய நாம மகிமைப்படட்டும். इस आराधना में आपके नाम की महिमा हो. படிக்கிற பாடல் ஆசீர்வதித்தாங்க. गाने वाले गीतों को आशीष कीजिए. வேத தியானத்தை ஆசீர்வதித்தாங்க. वचन की ध्यान को आप आशीष வர்ஷிப் करती ஆசீர்வதித்தாங்க. वर्शिप को आशीष करती दीजिए. எங்களோடு நீர் பேசும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आप हमसे बातें कीजिए. எல்லா பகுதிகளிலும் सारे भागों में உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். आपका अनुग्रह இந்த ஊழியத்தில் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிப்பீராக. सेवकाई में जुड़े हुए सभी को आशीष படிக்கிற कीजिए. பிள்ளை ஆசீர்வதிப்பீராக. गीत गाने वाले बच्चों को आशीष இந்த कीजिए. வீடியோவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் உயர்த்தும்படியாக செபிக்கிறேன். इस वीडियो देखने वालों को प्रभु आप ऊंचा करके உம்முடைய आशीष நாமத்தை कीजिए. மகிமைப்படுத்தும்படியாக செபிக்கிறேன். आपका नाम की परमेश्वर महिमा हो. நீங்க பிறகு நாங்கள் சேருகிறோம். आप बड़े और हम घटे. பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நீர் முழுவதும் ஆளுகை செய்யணும். आप पूरी तरह से राज्य कीजिए. கிருபையினால நிரப்புங்க. अनुग्रह से भर இந்த दीजिए. வல்லமையினால் எங்களை மூடும்படியாக செபிக்கிறேன். आपके सामर्थ्य में भर दीजिए. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? खुशी में है क्या? அப்படி ஆண்டவர் நல்லவர். हमारा परमेश्वर अच्छा है. இந்த மாசத்தின் கடைசி வாரத்துல வந்து இருக்கிறோம். इस महीने के आखिरी हफ्ते में हम लोग आए हैं. நிச்சயமாகவே निश्चय கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில परमेश्वर आपके ஒரு जीवन में மகத்தான காரியங்களை, एक बड़ा कार्य, ஒரு மேலான காரியங்களை, एक ऊंचाई के நீங்க कार्य எதிர்பார்த்ததை விடதான जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, அற்புதங்களை அவர் செய்வதற்கு அவர் போதுமானவர். अद्भुत काम करने के लिए वो काफी है. நீங்களோ எங்களோடு கூட आप हमारे साथ मिलकर பாடல் படிக்கும்படியாக गीत गाने के உங்களை लिए அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आपसे हम प्रेम से विनती நம்ம ஒரு करते हैं. தமிழ் பாடலையும் हम एक तमिल गीत को, இந்தி பாடலையும் हिंदी गीत को நாம் படித்து हम गाकर தேவ நாமத்தை நம்ம உயர்த்தி நம்ம மகிமைப்படுத்தலாம். परमेश्वर के नाम की महिमा करें. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है. தமிழ் பாடலை படிக்கலாம். हम एक तमिल गीत गाएं. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானின் சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீர் பிறக்கு முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. அந்த பாட்டை படிக்கலாம். பலியானின் சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானின் சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க பிரித்தெடுத்தீ பிறக்கும் முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட. பிரித்தெடுத்தீ பிறக்கும் முன்னால்
உமக்கென்று வாழ்ந்திட ஆராதனை உமக்கே அனுதினமும் உமக்கே. எல்லாரும் இணைந்து படிக்கலாமா? ஆராதனை உமக்கே அனுதினமும் உமக்கே. பிதாவானே என் தேவனே தகப்பனே என் தந்தையே மாட்சிமையோ மகத்துவமோ உமக்குத்தானே எந்தெந்தைக்கோ வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்குத்தானே வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்குத்தானே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து எல்லாரும் இணைந்து படிப்போம். ஆகி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினிற் குற்றம் நீங்க உம் இரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கி மகிழ செய்தி கரைபடாத மகளாக நிறுத்தி தினம் பார்க்கின்றே வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்குத்தானே. எல்லாம் சொல்லலாமா? வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்குத்தானே. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினிற் குற்றம் நீங்க மாம்சமான திரையை அன்று இழுத்து புது வழி திறந்து
ரத்தம் சிந்தி கழுவினில் குற்றம் நீங்க ரத்தத்தால் பிதாவோடே மகிழ செய்தி உம் ரத்தத்தால் பிதாவோடே ஒப்புரவாக்கி மகிழ செய்தி கரைபடாத மகளாக இருத்தினாம் பார்க்கின்று வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்குத்தானே வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்குத்தானே அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எல்லாரும் எழுந்து படிக்கலாமா? எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினில் குற்றம் நீங்க பிரித்தெடுத்து பிறக்கும் முன்னே உமக்கென்று வாழ்ந்திட பிரித்தெடுத்து உமக்கென்று வாழ்ந்திட ஆராதனை உமக்கே அனுதினமும் உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அனுதினமும் உமக்கே हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हम एक हिंदी गीत गाएंगे। मीठा नाम प्यारा नाम, एक ही नाम यीशु नाम। हमारे यीशु मसीह का नाम बहुत मीठा नाम है, प्यारा नाम हमें, और पूरे दुनिया में एक ही नाम है, वही यीशु मसीह का नाम है। अब वही गीत को हम लोग गाएंगे। उसके नाम में चंगाई मिलती है, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलते हैं, शांति मिलती है। ये सब गाना इसमें वर्णन करता है। तो आप सब मिलकर हमारे साथ ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। मीठा नाम प्यारा नाम, एक ही नाम यीशु नाम। मीठा नाम प्यारा नाम, एक ही नाम यीशु नाम। मीठा नाम प्यारा नाम,
मीठा नाम प्यारा नाम एक ही नाम यीशु नाम मीठा नाम प्यारा नाम एक ही नाम यीशु नाम मीठा नाम प्यारा नाम एक ही नाम यीशु नाम मीठा नाम प्यारा नाम एक ही नाम यीशु हालेलुया। हालेलुया। ये हुआ मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। भजन संगीता 140 का 1। सफेद वस्त्र सोनेरी मुकुट बजा के साथ ऊंचाई पर मैं, एक जीत का झंडा सदा की खुशी मेरे लिए स्वर पे है। सफेद वस्त्र सोनेरी मुकुट बजा के साथ ऊंचाई पर मैं, एक जीत का झंडा सदा की खुशी मेरे लिए स्वर में है। बादलों में आएगा आएगा, पल पल में मुझको वो सुंदर सा बदलेगा। दूतों के संग के हम उड़ेंगे बादलों पे, दूतों के संग के हम उड़ेंगे बादलों में। सफेद वस्त्र सोनेरी मुकुट बजा के साथ ऊंचाई पर मैं, एक जीत का झंडा सदा की खुशी मेरे लिए स्वर में है। सफेद वस्त्र सोनेरी मुकुट बजा के साथ ऊंचाई पर मैं, एक जीत का झंडा सदा की खुशी मेरे लिए स्वर में है। सफेद वस्त्र सोनेरी मुकुट बजा के साथ ऊंचाई पर मैं, एक जीत का झंडा सदा की खुशी मेरे लिए स्वर में है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 Psalm 66। प्रार्थना। परमेश्वर आपके वचन पढ़ने के लिए हमारी हृदय की आंखें खोल दो। आमीन। भजन संहिता 66 Psalm 66। मैं एक वचन पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे दूसरा वचन पढ़िए। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। அவர் நாமத்தின் மகோத்தத்தை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய துதியின் மகிமையை கொண்டாடுங்கள்। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे नमन करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। பூமியின் மீதெங்கும் உம்மை பணிந்து கொண்டு உம்மை துதித்து பாடுவார்கள், அவர்கள் உம்முடைய நாமத்தை துதித்து பாடுவார்கள் என்று சொல்லுங்கள்। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सुर्खी भूमि कर डाला, वे आनंद में से पार पार उतरे, वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। கடலை உலர்ந்த தரையாக மாற்றினார், ஆற்றை கால்நடையாய் கடந்தார்கள், அங்கே அவரில் களி கூர்ந்தோம்। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाए। हे देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में नाम गाओ। ஜனங்களே, நம்முடைய தேவனை சோஸ்தரித்து அவரை துதிக்கும் சத்தத்தை கேட்க பண்ணுங்கள்। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान पाया था। தேவனே, எங்களை சோதித்தீர், வெள்ளியை புடமிடுவது போல எங்களை புடமிட்டீர்।
तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने मूर्छितों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको बाढ़ के सुख से बच दिया है। மனுஷர் எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர், தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர்। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। என் இக்கட்டில் நான் என் உதடுகளை திறந்து என் வாயினால் சொல்லிய என் பொருத்தனைகளை உமக்கு செலுத்துவேன்। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेंढों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊँगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊँगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। தேவனுக்கு பயந்தவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கேளுங்கள், அவர் ஆத்துமாவுக்கு செய்ததை சொல்லுவேன்। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। என் இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருந்தேனாயில் ஆண்டவர் எனக்கு செவிகொடார்। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। என் ஜெபத்தை தள்ளாமலும் தமது கிருபை என்னை விட்டு விலகாமல் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக। पढ़ने वाला भजन संहिता समाप्त हुआ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हमने जो भजन संगीता पढ़े थे, भजन संगीता 66, उसमें हम देखेंगे 101 से लेके 20 तक वचन हैं और ये दाऊद का भजन है करके हम देखते हैं। इस भजन को हम लोग फिर से 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला भाग हम देखेंगे, पहला वचन से लेके 10 वचन तक परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लोगों को बुलाना। पहला वचन से 10 बजे तक परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लोगों को बुलाया जाना। दूसरा भाग में हम देखेंगे 11 से लेकर 15 तक अपना स्तुति और धन्यवाद को परमेश्वर को स्वीकारने के लिए परमेश्वर को बुलाना। और तीसरा भाग में हम देखेंगे 16 से लेकर 20 वचन तक परमेश्वर के कार्यों को गवाही से बताना। ये 3 भाग को हमने देखा। तो पहला भाग हम देखेंगे, पहला वचन से 10 वचन तक दाऊद कहता है, अपने लोगों को बुलाता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। दूसरा वचन, उसका नाम की महिमा का भजन गाओ और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। दाऊद यहाँ पे क्यों कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए बुलाना करके, वो लास्ट में आपको बताएगी मैं। पहला हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को जय जयकार करने यानी धन्यवाद देने के लिए वो बुलाता है। हम कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? कुछ भलाई किया है तो धन्यवाद देंगे, कुछ बुराई हो गया तो ना ही धन्यवाद देते हैं, ना स्तुति करते, ना कुछ करते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि वो पूरे लोगों को, पृथ्वी के सब लोगों को कहता है कि तुम सब परमेश्वर की जय जयकार करो। चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, तुम परमेश्वर को क्या करो? भजन गाओ, क्योंकि वो स्तुति का योग्य है। इस दुनिया में कोई मनुष्य किसी के लिए योग्य नहीं बनता, लेकिन अपना परमेश्वर हर कार्य के लिए योग्य है। वो योग्य केवल वही है और स्तुति का योग्य सिर्फ और सिर्फ वही है। आज देखेंगे कोई अच्छा गीत गाया तो उनको हम लोग प्रेस करते हैं, बहुत अच्छा गाया करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग उत्सुक करते हैं। और जो अच्छे दिखते हैं तो उनको कहते हैं कि वाह कितना सुंदर दिखता है। और कोई ड्रेस अच्छा पहने तो कितना खूबसूरत ड्रेस पहना है करके बोलेंगे। मतलब लोग तरफदारी बाहर के रूपी से देखता है, लेकिन परमेश्वर अपने हृदय के अंदर से हमारे धन्यवाद रूपी को देखता है कि हम कैसा उसको धन्यवाद देते हैं करके, क्योंकि वचन में लिखा वो धन्यवाद का योग्य है, वही योग्य परमेश्वर है। क्योंकि देखो तीसरा वचन में देखो, परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है और तेरी माँ सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। उसका कार्य कैसा है? परमेश्वर का भयानक है।
कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो भयंकर कार्य कौन करता है? अपना परमेश्वर। दुनिया वाले कुछ काम तो कुछ जगह तक ही पहुंच सकता है, उतना ही काम कर सकता है, लेकिन अपना परमेश्वर ऐसा नहीं। वो जो हमने सोचा भी नहीं, हमारे विचार से भी बाहर काम करने वाला अपना परमेश्वर है। वही भयानक काम करने वाला परमेश्वर है। और 5वें वचन में देखेंगे तो हम परमेश्वर के कामों को देखें और अपने कार्यों के कारण मनुष्य भययोग देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला और महानंदर को पार उतर डाला, और वहाँ हमने उसके कारण आनंदित हुए करके दाऊद कहता है, वचन में कहता है कि परमेश्वर के हर एक कार्य में उसने क्या किया है? एक आनंदित किया है। क्यों आनंदित किया है? परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छे रास्तों में चलाया, अच्छे भूमि में उनको चलाया, अच्छे मार्गों में उन्हें ले चलाया। इसके लिए परमेश्वर क्या किया? उसने धन्यवाद किया और आनंदित से धन्यवाद किया करके हम यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर 4 हफ्ता पूरा परमेश्वर ने हमें संभाला है। हमें कितने मुसीबत, कितने तकलीफ, कितने परेशानी अपने जीवन में आने के बावजूद भी परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर, परमेश्वर ने क्या किया है? हमें अच्छा कार्य बताकर, अच्छे जगह पर चलाकर, अच्छे राहों में ले जाकर, सूखी भूमि में हमें ले जाकर, हमें हमारे पाँव को ठेस न लगते हुए हमें परमेश्वर कैसा लेके आया? संभाल कर इस दिन में लेकर आया। इस कारण के लिए हम भी परमेश्वर क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। उसकी पराक्रम क्या है? सर्वदा प्रभुता करता है। 7वें वचन में हम देखते हैं कि उसने वो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जातियों को ताकता है। अपना परमेश्वर, हम कहते हो लंबा हमसे दूर है, वो कुछ को पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे करीब रहकर हमें ताकते रहता है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या आवश्यकता है। ये सब चारों तरफ से परमेश्वर हमें देखते आ रहा है। उस कार्य के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और उतना ही नहीं, उसने क्या 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो देश देश के लोगों को और हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति के राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमें पाँव को टलने भी नहीं दिया। अभी तक प्रभु ने संभाल कर हमें लेकर आया है। तो ये सब कार्य को याद करते हुए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद कहना चाहिए करके हमें दाऊद कहता है। तो हम भी इसी प्रकार से हर समय, चाहे सुख हो दुख हो हमारे जीवन में, चाहे कुछ भी हानि हो जाए, तो भी हमें क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हम लोग दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे अपनी स्तुति आराधना करने वाला परमेश्वर को स्वीकारने के लिए, जो हमारी स्तुति है, धन्यवाद है, वो स्वीकारने के लिए क्या करना है? परमेश्वर को दीनता से पुकारना है। तो हम आगे यहाँ पे देखे थे, दाऊद अपने पूर्वी इज़राइल लोगों, उसके पूर्वी पिता इज़राइल लोगों को किस तरह परमेश्वर ने उस मिस्र देश से छुड़ाते लाते समय जंगल के द्वारा और पानी के समुद्र के बीच में और अनेक मार्गों में उन इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने कैसा लेके आया? संभाल कर, उन्हें बचा कर, उन्हें उठा कर लेकर आया करके वो दाऊद उसे स्मरण करता है, याद करता है। वो याद करके परमेश्वर क्या करता है? वो धन्यवाद देता है। हम भी क्या करना चाहिए? हमारे पुराने जीवन में परमेश्वर पहले के उद्धार पाने के पहले, परमेश्वर को हम स्वीकारने के पहले, परमेश्वर से प्रेम रखने के पहले हम कैसे थे? हमें परमेश्वर ने कैसा रखा था? और प्रभु को जब हमने सच्चाई रूप से जाने, उसको हमने देखा और उसे चक्कर हमने देखा है, तो उसके बाद हम कैसा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं करके हमें देखना है, ज़रा ध्यान देना है। परमेश्वर, देखो दाऊद भी वही कहता है कि उसने पुराने समय पर पूर्वी पिता लोग ने, जब भी वो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को मिस्र देश से छुड़ाए, उस गुलामी से छुड़ाते समय किस तरह परमेश्वर ने जंगल के द्वारा और क्या सूखी भूमि पर उन्हें लेकर आया। कभी भी उनके कदम को डगमगाने उन्हें नहीं दिया, उनके पैर सूजा नहीं करके हम देखते, उनके चप्पल भी घिसे नहीं, उनके वस्त्र भी पुराने नहीं हुआ करके हम वचन में पढ़ते हैं। उतना अद्भुत रीति से कोई और लेकर नहीं आ सकता है, केवल हमारा परमेश्वर ही लेकर उतना अद्भुत करने वाला परमेश्वर। वो क्या कहता है? दाऊद कहता है कि उस परमेश्वर को हम दीनता से, जो धन्यवाद हम कहते हैं,
वो ऐसे ही हवा पे नहीं उड़ाना है, वो धन्यवाद सीधा परमेश्वर के पास पहुंचना है। आपको पता है परमेश्वर हमारा स्तुति को, हमारा धन्यवाद को बहुत ध्यान से और बहुत चाहत से, इंतज़ार से वो रहता है कि मेरे बच्चे कब आकर मेरा स्तुति करेगा, कब आकर मेरा धन्यवाद देगा। संसार वाले को हम लोग कितना धन्यवाद देते हैं, कोई कुछ हमें मदद किया है, कोई हमें कुछ गिरने से बचाया या फिर कुछ तो मदद हमें किया होंगे, तो हम कितने बार उस इंसान के बारे में बड़प्पन करके कम से कम 100 लोगों को तो बताते हैं कि बाबा इनके वजह से मैं आज बचा हूँ, इनके वजह से मैं आज इतना बड़ा आया हूँ, इनके वजह से मेरा ज़िंदगी बहुत संवर गया, मैं पहले कैसा था मैं कैसे हो गया अभी कैसा हूँ करके। अब कितने बार दूसरों मनुष्य के बारे में ही हम लोग कहते हैं, कभी परमेश्वर के बारे में कहा है? परमेश्वर के बारे में हमें कहना ज़रूरी है। हम कितने बार लोगों को कहा नहीं, परमेश्वर ने ही, हाँ ज़रूर मनुष्य ने मदद किया है, लेकिन परमेश्वर अगर उस मनुष्य के अंदर बात नहीं किया होता, परमेश्वर उस मनुष्य को बोला नहीं होता जा मेरे बेटा को मदद कर, तब वो मनुष्य कहाँ पे हमें मदद करेगा, कहाँ पे हमें सहायता करेगा। तो पूरे धन्यवाद का योग्य कौन है? हमारा परमेश्वर ही है। उसी को हमें दीनता से पुकारना है। हमारा स्तुति सीधा किसी के पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना। संसार लोगों को हमें धन्यवाद देना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमें किसे देना है? परमेश्वर को देना है। वो कभी हमें क्या नहीं करना है? नहीं भूलना है। तीसरा हम देखें कि परमेश्वर के कार्यों में गवाही क्या कौन दिया था? दाऊद दिया था। इतने सब कुछ कार्य दाऊद कहता है कि पहला कि आओ हम सब जय जयकार करेंगे करके कहता है, फिर बाद में कहता है कि परमेश्वर को अपने और खींचता है, वो स्तुति कहकर धन्यवाद देकर प्रभु को अपने तरफ खींचता है। अभी कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्या नहीं किया? अनसुनी नहीं किया। मेरी प्रार्थना को, मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना करके हम लोग देखते हैं जो 19 वचन और 20 वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने तो सुना है और मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है करके हम देखते हैं। दाऊद कहता है कि ये सब कहने के बाद कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की। इतना सब कुछ किया हुआ परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। धन्यवाद देकर परमेश्वर को अपनी ओर खींचकर, और तीसरा हम देखें कि उसने परमेश्वर को ऐसा कहता है कि उसने कभी भी मेरी प्रार्थना को क्या नहीं किया है? अनसुनी नहीं किया है। क्यों पता है? परमेश्वर सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। परमेश्वर ने क्या क्या किया है, ये सब कुछ दाऊद क्या कहता है? लोगों को बताना चाहता है। और उसके पहले दाऊद कहता है कि मैं 14 वचन में देखते हैं कि मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। हम कई बार परमेश्वर से हम प्रॉमिस करते हैं, कभी संकट के समय पे तकलीफ़ जब आया तब हम परमेश्वर अगर ये संकट मुझसे दूर हो गया तो मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को हम लोग प्रॉमिस करते हैं। क्या कभी उस प्रॉमिस को पूरा किया है क्या? ज़रा सोच के हमें देखना है। हम जो देखा जाए न्यू ईयर के समय हम एकदम बड़ा प्रॉमिस करेंगे कि इस साल मैं इतना देर कंपलसरी कैसे भी प्रार्थना करूँगा और इतने बाइबल इतना अध्याय में कंप्लीट करूँगा करके हम लोग 1 तारीख को 12 बजे बराबर हम लोग क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। वो 1 महीना बराबर चलता है, उसके बाद वो पता नहीं वो प्रॉमिस किधर जाता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं संकट के समय में जो मैंने मुंह खोलकर माना था वो भी मैं क्या करूँगा? मैं पूरा करूँगा, ऐसा कहता है। क्यों करूँगा? क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। और आखिरी में हम देखेंगे दाऊद ये सब कहता है जय जयकार करो, जय जयकार करो। वो क्यों कहना चाहता है? 9वां वचन में हम देखेंगे, 9वां वचन में हम पढ़ेंगे, लास्ट भाग में देखेंगे तो जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। हमें क्यों परमेश्वर को जय जयकार करना है पता है? उसने हमें जीवित रखा है। ये श्वास जो है, रात को हम लोग सोते सुबह उठते क्या गारंटी है? हम लोग अच्छा नींद में रहते, तीसरा आसमान तक चले जाते हैं, हमारा श्वास चल रहा है नहीं चल रहा है, हम जिंदा है हम मरा है, किसी को पता नहीं चलता है। सुबह जगने के बाद ही हम पता चलता है कि हाँ हम जिंदा है करके।
तो हमको परमेश्वर ने जीवित रखा है। इस कारण के लिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए पता है? 12 वचन में हम आखिरी भाग में देखेंगे, हम आग और जल से होकर आए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया करके हम यहाँ पे देखते हैं। आग और जल में होकर आए मतलब आग समान मुसीबत और जल समान कष्ट हमारे जीवन में आते समय में भी वो ना ही हमें जलने दिया है और ना ही हमें उस पानी में हमें डूबने दिया है, क्योंकि उसने हमें कैसा क्या किया? उभारा। उस कष्ट में गया हम ज़रूर है, क्योंकि वह जाना भी हमें चाहिए, कष्ट के मार्ग में जाना भी चाहिए, उस आग के जीवन में जाना भी ज़रूरी है, तब जाकर हम एक सोना जैसा हम बनेंगे। तो इसलिए उस समय जाने के बावजूद परमेश्वर ने हमें डूबने नहीं दिया, हमें उसने क्या किया? तुरंत उसने हमें उभारा है। उस कार्य के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे आखिरी बात ये है, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारी प्रार्थना को क्या की? अनसुनी नहीं की। 20 वचन में देखते हैं कि और न अपनी करुणा हमसे क्या किया? दूर नहीं किया। कितने बार हम लोग परमेश्वर से दूर चले गए, कई बार परमेश्वर को धोखा देके चले गए, हाथ छोड़कर भाग गए। परमेश्वर ने अपनी करुणा से हमें कभी दूर नहीं किया है। कई गलतियां हमने किया, हम खुद ही गलती कर लेते हैं और दोष पूरा प्रभु पे डालते हैं। मैंने आपके लिए इतना किया था, पर काय के लिए मेरे जीवन में ऐसा हुआ, क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, ये सब बोल के हम दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का करुणा कभी भी हमसे दूर नहीं हुआ है। ये याद रख के परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, जहाँ पर बैठे हैं आप सब अपने घुटने टेक कर उस परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। तो धन्यवाद दे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम क्यों धन्यवाद देना चाहिए? हमें क्यों परमेश्वर को जय जयकार करना चाहिए? क्यों उसकी आराधना करना चाहिए करके हमने वचन में थोड़ा देखा है। परमेश्वर पहला हम जो पूर्वी में हमें जीवन में क्या क्या हुआ था, हमें परमेश्वर ने किस किस हालत से हमें परमेश्वर ने बाहर लेकर आए थे, उसे याद करना है। इस महीना शुरू से लेके अभी तक आप देखिए आपका जीवन में क्या क्या संकट ऐसा आया था, ये सिर्फ आप ही जानते हो। क्या परमेश्वर ने आपको ऐसे ही छोड़ा? क्या प्रभु ने आपको ऐसे ही आपको अनाथ कर दिया? क्या नहीं, उसने आपको अपने साथ रखा है, अपने कंधों पर उठाया है, अभी तक हमें लेकर उसने हमें चलाया है। कितना अच्छा परमेश्वर देखिए। क्या उस परमेश्वर को हम धन्यवाद कहने बिना रह सकते हैं क्या? आइए हम सब मुँह खोलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु जी, आपने ही हमें लेकर आया प्रभु, आपने ही अपने कंधों पर हमें लेकर आया प्रभु जी। आप ही हमारा सब कुछ परमेश्वर है, आप ही हमारा सब कुछ परमेश्वर है। वही धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है, वही स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम पूरे दिल से उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, पूरे मन से उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब मुँह खोलिए, कोई चुप मत बैठिए। ऐसा कोई भी नहीं है जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया करके नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर ने सबके जीवन में सब कुछ बड़ा बड़ा भयानक कार्य हमारे जीवन में करता आया है। उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे, हम पूरे दिल से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो धन्यवाद हम कहते हैं वो परमेश्वर को अपनी ओर ले आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस धन्यवाद को उस सुगंध धूप के समान उसके पास जाता है। वो परमेश्वर अपने धन्यवाद को देखकर हम किस तरह धन्यवाद देते हैं करके वो देखकर हमें उस प्रकार से हमें वो आशीष करता है। उसने हमें दलदल के बीचों में से हमें उठाया है, उसने हमें आग और जल से हमें होकर जाने के बावजूद उसमें से हमें उसने उभारा है। हमारे ऊपर कितने घुड़सवारों ने हम पर चढ़ाई किए, कितने शत्रु हमारे ऊपर आए थे, कितने मुसीबत हमारे विरोध आए थे, कितने अपमान इस महीना हमारे जीवन में हुआ, कितना निंदा हमारे जीवन में हुआ था।
फिर भी परमेश्वर ने हमें डूबने नहीं दिया, उस दलदल में हमें डूबने नहीं दिया, उस कीचड़ में हमें फंसने नहीं दिया। कितना अच्छा प्रभु है। देखिए, आइए हम सब धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं। उसने हमारे पैर को हमें टलने नहीं दिया है, उसने हमें संभाला है, उसने हमें जिंदा रखा है। वचन कहता है हम जीवित हैं तो उसकी महाकरुणा है। अगर उसकी मर्जी है तो हम जिंदा है, अगर उसकी मर्जी नहीं तो कब का कब हम भस्म हो जाते, कब का कब हम कहाँ पे कहाँ चले जाते। हमारे ऊपर जो घास भी उग जाता, हम किधर के किधर पहुँच जाते। प्रभु का दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हमें अभी तक जिंदा रखा है। उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उसने हमें जिंदा रखा है। रोज रोज उठते समय हम प्रभु को धन्यवाद देना अवश्य है, उसे धन्यवाद देना अवश्य है। हमें इज़राइल का रक्षक, वो कभी न सोता है और कभी न ऊँघता है। हम कितने भारी नींद में जाने के बावजूद वो हमें संभालता है, वो हमें संभालता अपनी आंखों की पुतली के समान। वो हमें बचाता है, हमें रक्षक देता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ओ प्रभु धन्यवाद यीशु, उसने हम सब का प्रार्थना को सुना है, हमारी प्रार्थना को उसने सुना है, हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की है। हम घुटने टेका भी नहीं, मन में ऐसा सोचा भी था परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य हो गया तो अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार में कार्य हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा करके हमने मन से उसको हमें प्रार्थना किया था। परमेश्वर उस मन को भी देखा, वो देखकर परमेश्वर ने हमें उत्तर भी दिया है। कितना अद्भुत काम आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है। वो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो एल शडाय है, वो यहोवा निसी है, वो यहोवा राफा है, वो एल रोई है। हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें नजर रखने वाला परमेश्वर, हमें ताकने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। उस आसमानी परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं। एल शडाय, एल शडाय, सर्वशक्तिमान तू है। एल शडाय, एल शडाय, सर्वशक्तिमान तू है। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो,
तेरी हो, आराधना हो। सभी कहिए स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। एलोई एलोई नजर मुझ पर रखने वाले, एलोई एलोई नजर मुझ पर रखने वाले, स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। यीशु स्तुति तेरी हो, हाँ प्रभु जी, तारीफ तू ही तेरी हो, स्तुति के योग्य है, आराधना तू ही परमेश्वर आराधना के योग्य है। आमीन। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना आराधना हो यीशु, परमेश्वर स्तुति के योग्य हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आप पूरे दिल से कहेंगे, पूरे मन से प्रभु को स्तुति कीजिए। आपको स्तुति परमेश्वर, आपको स्तुति परमेश्वर, आपकी ही तारीफ, हम आपकी ही जयजयकार करेंगे, हम आपकी ही आराधना करेंगे यीशु। तू ही हमारा एलोई है, तू ही हमारा एल शद्दाई है, तू ही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा हमारा राफा है प्रभु जी। तू ही हमारी स्तुति के योग्य हो प्रभु जी, तू स्तुति के योग्य हो प्रभु जी। हम तेरी परमेश्वर आराधना करते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ तेरी हो, आराधना हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। यीशु स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। एलोई एलोई नजर मुझ पर रखने वाले, एलोई एलोई नजर मुझ पर रखने वाले, स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। यीशु स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। वही हमारा नजर रखने वाला परमेश्वर, जो वचन में हमने पढ़े थे, वो हमें ताकता है, अपनी नज़र से हमें देखता है, हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, हमें कौन से मुसीबत में है, हम कौन से संकट में हैं, ये सब नज़र रखने वाला हमारा परमेश्वर है। आज यहाँ पे प्रार्थना बैठने वाले आप सभी लोग अपने आप को सौंपी है, जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ है, परमेश्वर से विनती कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। निश्चय प्रभु आप भी एक दिन कहेंगे, मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना करके आप भी एक दिन ज़रूर कहोगे, क्योंकि वो हम पर नज़र रखने वाला परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, आपने इतने समय हमारे संग थे प्रभु जी। हमारे परमेश्वर मेडिटेशन में आप हमारी सहायता किए प्रभु। परमेश्वर हमारे पूर्वजों को, हमारे पूर्व पिताओं को परमेश्वर आपने जिस तरह से अपने मिस्र से छुड़ाकर उन्हें ले आकर परमेश्वर अच्छी भूमि में चलाए, उन्हें कनान देश में ले गए प्रभु। परमेश्वर उनको आपने अपने लिए उन्हें तैयार किए, उन्हें अपने गुण अनुवाद के लिए तैयार किए प्रभु। वैसे हमें भी आपने तैयार किया है पिता।
हम भी परमेश्वर वचन कहता है कि मैं इन लोगों में अपने लिए मैंने तैयार किया हूँ ताकि ये लोग मेरे ही गुण अनुवाद करेंगे करके। परमेश्वर इतने समय हम आपकी आराधना किए, आपकी स्तुति किए, स्तुति और परमेश्वर धन्यवाद आपके सामने ग्रहण योग्य बने प्रभु जी। परमेश्वर आप इस स्वीकार कीजिए जो जो प्रार्थना कर रहे हैं आंसू बहाकर, मैं तकलीफ में रहते हुए, परमेश्वर बीमारी से रहते हुए, कष्ट में रहते हुए, ज़रूरत से रहते हुए जो जो आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनिए प्रभु, उनको छूकर उन्हें चंगाई दीजिए। वे भी परमेश्वर कहें कि मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना करके वे भी परमेश्वर गवाही देने तक उन्हें परमेश्वर आप आशीष कीजिए, उन्हें छू लीजिए। परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारा आदर महिमा योग्य परमेश्वर को ही हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இவ்வளவு நேரமாக கர்த்தர் நம்மை ஆராதித்தோம். इतना समय हमने परमेश्वर की आराधना की है। சோத்திரம். ஆண்டவர் நம்மோடு இடைப்பட்டார். परमेश्वर हमसे मिला, நம்மளோடு அவர் பேசினார். हमसे उसने बातें किया। நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றங்களை அவர் எதிர்பார்க்கும்படியா அவர் விரும்புகிறார். हमारे जीवन में एक बड़ी परिवर्तन को वो चाहता है। நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் தொடர்ந்து இருக்கும்படியாக, उसके बच्चे बनकर लगातार रहने के लिए, நாம் அவரையே பிரியப்படுத்தல மாறும்படியாக, हम उसको ही प्रिय करने के लिए நம்மை நாமே அர்ப்பணித்துக் கொள்ள हम வேண்டும். अपने आप को अर्पण करना है। கர்த்தர் தாம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर ही आपको आशीष करेगा। இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से உங்க எல்லாருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आप सबको प्रेम की बधाइयां देते हैं। உங்களை மறுபடியுமாக இந்த வாரத்துல பார்ப்பது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. फिर एक बार इस हफ्ते में आपसे मिलने में बहुत आनंदित होते हैं। நிச்சயமாகவே நீங்களும் கர்த்தருக்குள்ளாக சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். निश्चय ही आप परमेश्वर में आनंदित हो करके विश्वास करते हैं। கொஞ்ச நேரமா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக கடந்து செல்லுவோம். थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। பரிசுத்த ஆவி நம்மோடு அவர் பேசுவாராக. पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। அவர் பெரியவர். वो महान है। ஒரு வசனம் வாசிக்கலாமா? एक वचन पढ़ेंगे। 1 நாளாகமம் पहला इतिहास की पुस्तक 4ஆம் அதிகாரம் 4वां अध्याय 9 10 வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसका 9वां अध्याय में कहा गया है। நான் தமிழ்ல முதல்ல படிக்கிறேன், पहले तमिल में पढ़ेंगे, பிறகு ஹிந்தில படிக்கலாம். फिर हिंदी में पढ़ेंगे। 1 நாளாகமம் पहला इतिहास की 4ஆம் அதிகாரம் 4वां अध्याय 9 10. 9 और 10। யாபேஸ் தன் சகோதரை பாரிக்கிலும் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான். அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள். யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தூங்கி என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இது யாபேஸை குறித்து அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. याबेस के बारे में यहाँ पर कहा गया है। யாபேஸ் தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்க்கிலும் याबेस अपने भाइयों से भी அவன் ஒரு கனம் பெற்றவனாக அவன் वो காணப்பட்டான். उनसे अधिक प्रतिष्ठित था। அவருடைய தாய் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி उसकी माता ने उसे दुख के साथ जन्म दिया அவனுக்கு करके யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் என்று சொல்லப்பட்டு उसे இருக்கிறது. याबेस करके नाम दिया करके कहा गया है। யாபேஸ் ஒரு ஜெபத்தை இந்த 10 வசனத்தை பார்க்க முடிகிறது. याबेस एक प्रार्थना को इस 10वां वचन में करता है क्योंकि हम देखते அவன் हैं சொல்லுகிறான், वो कहता है தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து परमेश्वर मुझे आशीष कर என் எல்லையை பெரிதாக்கி मेरे देश को बड़ा कर சோதரம் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு बुराई मुझे दुख न करते हुए உம்முடைய கரம் என்னோடு இருந்து आपका हाथ मेरे साथ அதற்கு रहकर தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு और कोई बुराई मुझे दुख न करते அதற்கு हुए என்னை விலக்கி காத்தோலும் என்று வேண்டிக் और கொண்டான். उससे मुझे बचा लो करके उसने विनती அவன் किया வேண்டிக் கொண்டதை और उसने जो कुछ मांगा தேவன் அருளினார். परमेश्वर ने उसे दिया। இந்த நாட்களில इन दिनों में தீங்கிலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பு என்பதான ஒரு
தலைப்பில கர்த்தர் நம்முடைய இன்றைக்கு பேசுவாராக. बुराई से एक सुरक्षा करके एक टाइटल से हम आज परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। யாபேசின் ஜெபத்துல ஒரு காரியம் காணப்பட்டது. याबेस की प्रार्थना में एक कार्य हम देख सकते हैं। அவன் என்ன ஜெபிக்கிறான்? वो क्या प्रार्थना करता தீங்கு है? என்னை துக்கப்படுத்த கூடாது, बुराई मुझे दुख नहीं करना है, அதில் என்னை விலக்கி என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள उससे வேண்டும். मुझे अलग करके बचाना है करके कहता है। இந்த நாட்களிலே इन दिनों में சோத்திரம் தீங்குகள் இன்றைக்கு பெருகிக் கொண்டு இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. बुराई आज के दिनों में बढ़ रही है करके हम देख सकते हैं। சோத்திரம் கொள்ளை நோய்கள் இன்றைக்கு பெருகிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. महामारियां बढ़ रही है करके हम देख सकते हैं। அப்போ யாபேசை போல याबेस के समान இந்த நாட்களிலே इन दिनों में ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். प्रार्थना करने वाले एक परमेश्वर के लोग जैसा हमें बनना है करके परमेश्वर चाहता யாபேஸ் है। ஜெபிக்கிறான், याबेस प्रार्थना करता தீங்கு है, என்னை துக்கப்படுத்த விடக்கூடாது, बुराई मुझे दुख नहीं करना है, அதிலிருந்து என்னை விலக்கினை பாதுகாத்துக் கொள்ள उससे வேண்டும் मुझे छुड़ाकर बचा लो, என்ற ஒரு ஜெபத்தை எடுக்கிறார். ऐसा वो प्रार्थना करता है। எப்படி யாபேசை ஜெபித்தாரோ किस तरह से याबेस ने प्रार्थना किया, கீழே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. नीचे के भागों में कहा அவன் गया है, வேண்டிக் கொண்டதை और उसने जो कुछ मांगा தேவன் அருளினார். परमेश्वर ने वो पूरा நீங்க किया। ஒரு பாதுகாப்புக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது, आप लोग सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते समय, குடும்பம் தீங்கிலிருந்து பாதுகாத்து கர்த்தருடைய அடைக்கலம் வேண்டும் என்று நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது, परिवार बुराई से बचे रहकर एक अच्छे कार्य में रहने के लिए प्रार्थना करते समय நிச்சயமாகவே निश्चय ही யாபேசின் ஜெபத்தை கேட்டவர் याबेस की प्रार्थना को सुना हुआ இந்த சூழ்நிலைகளிலும் इन स्थितियों में, இந்த தீங்கின் காலத்திலும் इन बुराई की कार्यों ஒரு में பாதுகாப்பை एक கொடுக்கும்படியாக सुरक्षा को देने के உங்களுடைய लिए, குடும்பத்தின் மேல தேவனுடைய அடைக்கலம் இருக்கும்படியாக आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा रहने के लिए அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் நிச்சயமாக கேட்பார். और प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा। பாருங்க, பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, தெளிந்த புத்தியுள்ளவராயிருங்கள், अच्छे ज्ञान के साथ रहो, உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் हमारी विरोधी जो शैतान है எவனை விளங்கலாம் என்று சொல்லி इसे निगले कर அவன் சுற்றி திரிகிறான். वो घूम फिर रहा है, அவன் சுற்றி वो திரிகிறான். घूम फिर रहा அதாவது है। சாத்தான் இன்றைக்கு தீமைகளை செய்வதற்காக இன்னைக்கு அவன் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். शैतान आज बुराई करने के लिए और तड़प रहा है, அது விசேஷமாக और विशेष रीति தேவனுடைய से பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக परमेश्वर की आराधना करने वालों के பல विरुद्ध பல தீங்குகளை செய்யும்படியாக कई प्रकार की बुराई करने के लिए இன்றைக்கு அவன் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான். आज जो कार्य कर रहा அதாவது है, ஏதாவது ஒரு தீங்கை ஜனங்களுக்கு செய்து कोई ना कोई बुराई लोगों के जीवन में कर தேவனிடத்தில் அவர்கள் பிரிந்து கொள்ளும்படியாக, परमेश्वर के से उनसे अलग करने के அவர்கள் लिए, உபத்திரங்களை கொடுக்கும்படியாக उन्हें उपद्रव देने के இன்னைக்கு लिए தீமையான காரியங்களை செய்து கொண்டு இருப்பதை நாம் பார்க்க आज முடிகிறது. जो बुराई का कार्य कर रहा है करके हम देख सकते हैं। அதைத்தான் பேதுரு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वही पत्रस में कहा गया அவனை है, எவன் விளங்கலாம் என்று சொல்லி வகை தேடி சுற்றி वो திரிகிறான். किसे निगले कर वो यहाँ वहाँ फिरता है। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், तो परमेश्वर के लोग हम, நம்முடைய குடும்பம், हमारी परिवार, நம்முடைய பிள்ளைகள் हमारे बच्चे அவனுடைய வலைக்குள்ளாக விழுந்து விடக்கூடாது. उसके जाल में हमें नहीं गिरना है, அவன் செய்கிற தீங்கின் காரியத்துக்குள்ள விழுந்து वो விடக்கூடாது. करने वाले बुराई के कार्यों में नहीं அப்ப गिरना அதில் ஒரு है। பாதுகாப்பு கொடுக்கும்படியாக तो उन सबसे सुरक्षा पाने நாம் के लिए ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக, हमें जागरूक होकर, நாம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக हमें अच्छी बुद्धि के இந்த साथ உலகத்தில் நம்ம வாழ வேண்டும். हमें संसार में जीना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर वही चाहता है। மத்தேயு சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय, அது பைபிளில் சொல்லப்பட்டு उसमें இருக்கிறது. 13 में कहा गया है, எங்களை சோதனையிலிருந்து எங்களை நீ தீமையிலிருந்து விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். हमें परीक्षाओं से हमें बचा लो। சோதனையிலிருந்து விலக்கி பாதுகாத்து ஜெபம் ஏற்படுகிறது. हमारी परीक्षाओं से हमें बचाओ करके प्रार्थना இந்த करते हैं। உலகத்துல பல சோதனைகள் உண்டு, इस संसार में अनेक प्रकार की परीक्षाएं பல हैं, தீமைகள் உண்டு. कई प्रकार की बुराइयां அது हैं। எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளிலும் कोई भी प्रकार की स्थिति में அந்த சோதனையிலிருந்து, उन सारे प्रकार के कार्यों से, தீமையிலிருந்து बुराइयों से நம்முடைய ஆண்டவர் விலக்கி காக்கிறவர். हमें परमेश्वर छुड़ाता है। பாருங்க, கோழி தன்னுடைய குஞ்சுகளுக்கு வரப்போகிறதான ஆபத்தை அது தெரிவிக்கிறது. मुर्गी जैसे अपने बच्चों को आने वाली जो समस्या से वो बतलाती है। ஒரு ஈகள், ஒரு கழுகானது जो एक उकाब जो है, சோ அந்த குஞ்சியை தூக்க வருகிறது என்று சொன்னால், अगर वो मुर्गी के बच्चे को उठाने के लिए आ रहे हैं तो அதற்கு முன்பதாக उसके पहले ही அந்த தாய் சோதரம் அந்த அந்த தாய் கோழியானது वो जो मुर्गी जो है அந்த குஞ்சுகளுக்கு சோதரம் அடையாளத்தை காண்பிக்கிறது. वो अपने बच्चों को एक सुरक्षा देती தன்னுடைய है, செட்டைக்குள்ளாக வரும்படியாக अपने
पंखों के अंदर उन्हें आने के लिए அது சோதர கூப்பிடுகிறது. उन्हें पुकारती है। அவ்வண்ணமாகவே इस तरह से அந்த கோழி குஞ்சுகள் वो जो मुर्गी के बच्चे அந்த हैं கோழியினுடையதான செட்டைக்குள்ளாக புகுந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. वो मुर्गी के पंखों तले आकर सुरक्षा पहुंच जाती அப்ப है। தீங்கு எங்கெல்லாம் இந்த தேசத்துல உலகத்துல பெருகி கொண்டு இருக்கிறதோ बुराई इस देश में जहां-जहां बढ़ रही हो, அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நமக்கு ஆண்டவர் அவருடைய செட்டை நிழலுக்குள்ளாக பாதுகாப்பை அவர் கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमें उसके पंखों के तले सुरक्षा पाने के लिए सुरक्षित देता அந்த है। உன்னதமானவருடையதான நிழலுக்குள்ளாக பாதுகாப்பு அவர் கொடுக்கிறார். तो ऊंचाई परमेश्वर के छावनी के भीतर हमें सुरक्षित रखता அந்த है। சங்கீதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वही वचन में कहा गया है 121ஆம் சங்கீதம் 121वां वचन 7ஆம் में வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 7वां वचन में कहा गया है கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். परमेश्वर तुझे सारे बुराइयों से बचाएगा அவர் உன் ஆத்துமாவையும் और காப்பார். वो तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। எல்லா தீங்கும் सारी बुराई ஆண்டவர் நம்மளை விலக்கி காக்கிறவர். परमेश्वर हमें बचाता है। சரி, ஆண்டவராகிய तो கர்த்தர் हमारा परमेश्वर நம்முடைய குடும்பத்தை हमारे परिवार को எல்லா தீங்கிற்கு விலக்கி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். सारे बुराई से अगर बचाना हो तो குடும்பம் எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும்? परिवार कैसे रहना है? ஒரு மூன்று காரியங்களை 3 कार्यों को ஆண்டவருடைய உதவியோடு கூட परमेश्वर की मदद से அவருடைய பிரசன்னத்தோடு கூட उसकी प्रसन्नता से பேசும்படியாக बातें करने के கர்த்தர் लिए கிருபைகளை செய்வாராக. परमेश्वर अनुग्रह करेगा। அப்ப அந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? परिवार कैसे रहना है? முதலாவதாக பார்க்கும் பொழுது सबसे पहला देखते हैं ஒரு குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று एक சொன்னால் परिवार अगर सुरक्षित होना हो तो வேத வசனத்தினால் அந்த குடும்பம் கட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டும். परमेश्वर की वचन के अनुसार उस परिवार बांधा जाना चाहिए। மத்தேயு சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 7ஆம் அதிகாரம் 7वां अध्याय 24 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 24 में कहा गया அங்க है, ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டு वहां இருக்கிறது. पर एक कार्य कहा गया है। ஆகையால் इसलिए நான் சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு मैंने बोले हुए इन कार्यों को सुनकर இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ इसके अनुसार जो नहीं करता है அவன் தன் வீட்டை वो अपने परिवार को மணலின் மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான். मिट्टी के ऊपर बांधा हुआ निर्बुद्धि मनुष्य के समान वो होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தீமையிலிருந்து ஒரு குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் சொன்னா बुराई से अगर एक परिवार सुरक्षित होना हो तो அந்த குடும்பம் தேவ வசனத்தினால கட்டப்பட்டு இருக்க वो வேண்டும். परिवार परमेश्वर की वचन के अनुसार बांधा जाना இது है। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पर कहा गया है சோதரம் ஒரு குடும்பம் கட்டப்படும் என்று சொன்னால் एक परिवार अगर बांधा जाना हो, இந்த வசனத்துல பாருங்க इस वचन में देखिए அந்த வீடு வந்து वो घर जो है மணலின் மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. मिट्टी के ऊपर बनाया हुआ निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। ஒரு करके कहा வீடு गया है। கட்டும் பொழுது एक घर बांधे जाते समय சோதரம் மணல்ல யாராவது கட்டுவாங்களா? मिट्टी के ऊपर कोई बनाता है क्या? அவர் மணல்ல கட்ட மாட்டார்கள். मिट्टी में नहीं बनाते। சோதரம் அதான் அந்த வீடானது वो घर जो है அது கன்மலையின் மேல கட்டின ஒரு வீடாக இருக்க वो வேண்டும். पर्वत के ऊपर बनाए हुए एक घर के समान होना ஆண்டவர் है। இயேசு கிறிஸ்து और परमेश्वर यीशु இந்த मसीह அதிகாரத்துல इस अध्याय में ரெண்டு சம்பவங்களை ரெண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறார். दो कार्य को कहता है। ஒன்று மணலினால கட்டப்பட்ட வீடு, एक जो मिट्टी के ऊपर बनाया हुआ एक घर இன்னொன்னு கன்மலையின் மேல கட்டப்பட்ட வீடு. और एक पर्वत के ऊपर बनाया हुआ एक घर। புத்தி உள்ளவன் जो बुद्धिमान है கன்மலையின் மேல கட்டப்பட்ட அங்க வீடு கட்ட இருக்கிறான். पर्वत के ऊपर अपने घर को बनाता அப்ப है। அந்த வீட்டு மேல वो घर के ऊपर எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் कितना बारिश हुआ तो भी, எவ்வளவு காற்றடித்தாலும் कितनी हवा चली तो भी, எவ்வளவு புயல் அடித்தாலும் कितनी तूफान आए तो அப்ப भी, தேவனுடைய வசனத்தினால परमेश्वर के वचन के அவருடைய अनुसार வார்த்தையினால उसकी बातों के அந்த अनुसार வீடு கட்டப்பட்டு இருக்கும் என்று अगर சொன்னால் वो घर बांधा गया हो तो அந்த வீட்ல இருந்து தீங்கு வராது. उस घर से बुराई नहीं आएगी। அந்த வீட்டு மேல எந்த ஆபத்தும் வராது. उस घर के ऊपर कोई समस्या नहीं அந்த आएगा। வீடு பாதுகாப்பா वो காணப்படும். घर सुरक्षित रहेगा। அந்த வீட்டில் தேவ பாதுகாப்பு उस இருக்கும். घर में परमेश्वर की रक्षा ஆனா रहेगा। இன்னொரு வீடு இருக்கிறது. लेकिन एक और घर है, அது மணலினால கட்டப்பட்ட வீடு. वो रेतों के ऊपर बनाया हुआ एक घर அது है। புத்தி இல்லாத மனுஷன் அதை கட்டி वो एक இருக்கிறான். निर्बुद्धि मनुष्य उसे बनाता है। அப்போ பெருமழை பெய்யும் பொழுது, तो बड़ी वर्षा होते समय, இல்ல காற்று அடிக்கும் பொழுது, या हवा आते समय, இல்ல புயல் அடிக்கும் பொழுது, या तूफान आते அந்த समय, கட்டப்பட்ட மணலில் கட்டப்பட்ட वो வீடானது मिट्टी के ऊपर बनाया हुआ वो घर जो அது है என்ன செய்யும் என்று वो क्या சொன்னால் होगा? அது விழுந்து விழுந்து वो விடும். टूटकर गिर पड़ेगा। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப தேவனுடைய அந்த வசனத்தின் மேல, परमेश्वर के वचन के ऊपर, அந்த கன்மலையின் மேல, उस चट्टान के அந்த ऊपर, கன்மலை யார்? वो पर्वत कौन है? ஒன்னு கொஞ்சம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. पहला कुरिन्थियों में कहा गया
அந்த है கன்மலை கிறிஸ்துவே. वो जो पर्वत है वो हमारा அப்ப मसीह है। நம்முடைய குடும்பமானது हमारा परिवार जो है, தீங்கிலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் बुराई से अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो நம்முடைய வீடானது हमारा घर जो है கன்மலையின் மேல கட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டும். पर्वत के ऊपर बांधा जाना அந்த है, கிறிஸ்துவின் மேல கட்டப்பட்டு இருக்க वो வேண்டும். मसीह के ऊपर बांधा जाना அவருடைய है, வார்த்தையின் மேல கட்டப்பட்டு இருக்க उसके வேண்டும் वचनों के ऊपर बांधा जाना है। என்று நம்மால அங்க பார்க்க முடிகிறது. ऐसा हम देख सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைக்கு आज भी உங்களுடைய வீடு आपका घर இல்ல உங்களுடைய குடும்பம் या आपका परिवार யார் மேல கட்டப்பட்டு இருக்கிறது? किसके ऊपर बांधा गया இல்ல है, எந்த மனுஷன் மேல ஒரு நம்பிக்கையா கட்டப்பட்டு या இருக்கிறது? किस मनुष्य के ऊपर भरोसे के साथ बांधा இல்ல गया உங்க है, நம்பிக்கை யார் மேல இருக்கிறது? या फिर आपकी भरोसा किसके ऊपर है? ஒருவேளை நீங்க மற்ற யார் மீதா வீடு கட்டப்பட்டு இருந்தால் अगर आप किसी और के ऊपर अपना घर बांधे இல்ல हो, குடும்பம் உங்க குடும்பமானது आपका परिवार जो है யார் மீதாவது நம்பிக்கை வைத்து இருந்தால் किसी और चीजों में भरोसा हो तो அது குடும்பம் நடத்த முடியாதது. परिवार नहीं चला पाएंगे। அந்த குடும்பமானது அங்க இங்கமாக சோதரம் அது இடிந்து விழும். वो परिवार जो है यहाँ वहाँ तितर बितर होगी। இன்னைக்கு அநேகரை பாருங்க आज अनेकों को देखिए, சோதரம் ஆலோசனை கேட்பதற்காக सलाह सुनने के लिए, குடும்பத்தை நடத்துவதற்காக परिवार को चलाने के लिए மனிதர்களை நாடி தேடி போகிறார்கள். मनुष्यों को ढूंढ कर जाते हैं, சோதரம் ஜோசியர்களை தேடி போகிறார்கள். जो जादू टोना करते हैं उन्हें ढूंढ कर जाते हैं, மந்திரவாதிகளை தேடி போகிறார்கள். मंत्र करने वालों की ओर जाते கிளி हैं, ஜோசியம் பார்க்க போகிறார்கள். तोतों की जो जोशे देखते हैं उन्हें देख के जाते இப்படியாக हैं। इस तरह மனிதன் ஆசீர்வாதமாக வாழும்படியாக मनुष्य की आशीष से जीने के அவருடைய लिए, குடும்பம் தீமையிலிருந்து பாதுகாக்கும்படியாக उनके परिवार बुराई से बचने के அவர்கள் लिए பல வழிகளை நாடி தேடுகிறார்கள். अनेक मार्गों को वो लोग ढूंढ कर जाते இந்த हैं। வசனத்தை கேட்கிற உங்களுடைய குடும்பம் इस वचन को सुनने वाला आपका परिवार எதுல கட்டப்பட்டு இருக்கிறது? किस में बांधा गया है? பணத்துல கட்டப்பட்டு இருக்கிறதா? पैसों के ऊपर बांधा गया है இல்ல क्या? வேற எந்த மேல கட்டப்பட்டு या இருக்கிறது? किसी और कार्यों में बांधा गया எந்த है? மனுஷன் மேல கட்டப்பட்டு या இருக்கிறது? फिर किस मनुष्य के ऊपर बांधा गया உங்களுக்கு है? தீமையிலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று आपको சொன்னால் बुराई से अगर सुरक्षा चाहिए तो தெளிவாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார், अच्छी तरह से परमेश्वर உங்க कहता है, வீடானது आपका घर கர்த்தருடைய வார்த்தையினால கட்டப்பட்டு இருக்க परमेश्वर के வேண்டும். वचन के ऊपर बांधा जाना है। கண்மலையாக கிறிஸ்துவின் மேல கட்டப்பட்டு இருக்க हमारा வேண்டும். चट्टान परमेश्वर के ऊपर बांधा जाना அப்படி है। கட்டப்பட்டு இருக்கும் ऐसे பொழுதுதான் बांधे जाते समय நமக்குள்ள தேவனுடைய வசனமும் हमारे अंदर परमेश्वर की அவருடைய वचन, வார்த்தையும் இருக்கும் பொழுது उसकी वचन हो அந்த देते समय குடும்பமானது वो परिवार அது जो है, நிலைத்து वो நிற்கும். उसमें स्थिर रहेगी। ஹalleluya. हालेलुया। எந்த தீங்கும் அங்க தொடராது. कोई भी बुराई उनका पीछा नहीं करेगा। ஆபிரகாமை குறித்து अब्राहम के बारे में கர்த்தருக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. परमेश्वर का एक बड़ी कार्य थी, அவனை குறித்து கர்த்தரே சொல்லுகிறார். उसके बारे में परमेश्वर कहता है। ஆதியாகமம் उत्पत्ति की पुस्तक 18ஆம் அதிகாரம் 18वां अध्याय 19 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 19 वचन में कहा गया அவன் है, தன் பிள்ளைகளுக்கும் वो अपने बच्चों को தனக்கும் और अपने आप को பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும் और फिर आने वाली अपने लोगों சோதர को, நீங்கள் நீதியையும் आप लोग धर्मी को நியாயத்தையும் செய்து और न्याय को करते हुए கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று परमेश्वर के मार्गों में चलो करके கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் क्या என்றார். देता है करके मैं जानता हूँ करके कहा। என்ன சொல்லுகிறான்? क्या कहता है? கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு தன்னுடைய சந்ததிகள் நடத்துவான். परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी जो जनरेशन है उनको चलाएगा। அதான் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर की वचन की ओर वो लोग कान लगाना है करके, கர்த்தருடைய வழியில நடப்பார்கள் என்று சொல்லி परमेश्वर के मार्गों में चलाना है करके, என்னுடைய தாசனாகிய ஆபிரகாம் அறிந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி मेरा दास अब्राहम जानता है करके, கர்த்தர் அதை சாட்சியாக சொல்லுகிறார். परमेश्वर वो गवाही के रूप में कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, இன்றைக்கு आज भी உங்களுடைய குடும்பமானது आपका परिवार जो है, உங்களுடைய பிள்ளைகள் आपके बच्चे जो है எதிர் மேல கட்டப்பட்டு இருக்கிறார்கள். किसके ऊपर बांधे गए हैं? கொஞ்சம் யோசிக்கிற ஒரு சமயத்தில் இன்றைக்கு நம்ம வந்து இருக்கிறோம். जरा सा सोचने वाला एक समय में हम आए हैं। பாருங்க, ஆபிரகாமை குறித்து ஆண்டவர் பெரிய எதிர்பார்ப்பை வைத்திருந்தார். अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने एक बड़ी कार्य रखा ஆண்டவருடைய है। எதிர்பார்ப்பை परमेश्वर की चाहत को ஆபிரகாம் अब्राहम நிறைவேற்றினார். पूरा करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து परमेश्वर की वचन को मानकर, சோதர அவருடைய வார்த்தையை நம்ம நேசித்து उसकी वचनों से मैं प्रेम இந்த करके உலகத்தில் வாழும் பொழுது संसार में जीते समय எல்லா தீங்கிலிருந்தும் सारे बुराइयों से நம்மளை ஆண்டவர் விலக்கியவர் பாதுகாத்துக் हमें கொள்ளுவார். परमेश्वर छुड़ा कर बचाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, உங்க குடும்பம் आपकी परिवार தீங்கிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். बुराई से अगर सुरक्षित रहना है, முதலாவதாக सबसे पहले நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? आपने क्या करना है? வேத தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. शास्त्र में कहा गया है, அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையில உங்க குடும்பம் கட்டப்பட்டு இருக்க परमेश्वर வேண்டும். की वचनों में अपना परिवार बांधा जाना है। அப்பொழுதுதான் तब ही பாருங்க, அங்க பெரிய ஒரு மாறுதல் கட்டளையிட முடியும். वहाँ पर बड़ी बदलावट आएगी। அங்க அப்பொழுதுதான் तब भी அங்க ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும். वहाँ पर एक सुरक्षा நீங்க आएगी। உபாகமும் आप लोग व्यवस्था बना 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय அங்க 6ல இருந்து 6 से 9 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 9वां वचन में कहा गया இன்று है, நான் உனக்கு
கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் இருதயத்தில் இருக்க கடவது. आज मैं तुझे आज्ञा देने वाली ये वचन तेरे हृदय में रहे. நீ அவைகள் உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து तो उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखाकर, நீ உன் வீட்டில் உட்கார போதும், तो अपने घर में बैठते समय, வழியில் நடக்கிற போதும், रास्ते में चलते समय, படுத்துக் கொள்ளுகிற போதும், या लेटते समय, எழுந்து போகிற या போதும் उठकर चलते समय அவைகளை குறித்து பேசு. उनके बारे में तो बातें कर. அவைகளை बोले உன் கைகளின் மேல் அடையாளமா கட்டிக் கொள்வாயாக. अपने हाथों के ऊपर एक चिन्ह के समान बांध ले. அவைகள் उन्हें உன் கண்களுக்கு நடுவாக ஞாபகக்குறியா இருக்க கடவது. अपनी आंखों के बीच में टीके के समान रहे. அவைகளை उन्हें உன் வீட்டு நிலைக்காலிலும் अपने घर की चौखट உன் पर வாசலிலும் और अपने फोकट पर அதை எழுதுவாயாக. उन्हें तू लिखे. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு, परमेश्वर इजरायली के लोगों को, அங்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு उनके लोगों को அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? क्या कहता है? உங்க பிள்ளைகளுக்கு अपने बच्चों को நீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கவனமா நீங்க போதிக்க आप வேண்டும். लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सिखाना है. நீங்க எத்தனை குடும்பம், आज कितना परिवार, எத்தனை பெற்றோர்கள் कितने माता पिता ஒரு நாளைக்கு एक दिन में கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறதுக்கு சமயம் கொடுக்கறீங்க? परमेश्वर के वचन को बच्चों को सिखाने के लिए समय देते हैं. ஆண்டோட வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கு பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீங்களா? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए कितने समय देते हैं? ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். परमेश्वर ने आज्ञा दिया है. நீங்க எப்படி செய்ய வேண்டும்? आप लोग ऐसे करना है. வீட்ல உட்காரும் போதும், घर में बैठते समय, எழுந்திருக்கும் போதும், उठते समय, படுத்திருக்கும் போதும் सोते समय அவைகளை குறித்து நீங்க பேச வேண்டும். उनके बारे में आपको बातें करना है. அநேக பிள்ளைகளுக்கு அது குறித்து பேசுறாங்களா? आज अनेक लोग उसके बारे में बातें करते हैं. கர்த்தருடைய क्या? வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுக்கறாங்களா? परमेश्वर के वचनों को वो सिखाते நீ हैं இந்த क्या? வழியில நடக்க வேண்டும்படி சொல்லி கொடுக்கறாங்களா? तो इस मार्गों में चल करके ऐसा कहते हैं क्या? அது சொல்லுங்க, உன் கையின் மேல் அடையாளமா கட்டிக்கொள்வாயாக. अपने हाथों के ऊपर चिन्ह के समान बांध ले. அவைகள் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியா இருக்க கடவது. उन्हें अपनी आंखों के बीच में तो एक चिन्ह के समान रख. இன்னைக்கு தேவன் அறிந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில, आज परमेश्वर को जानने वाले लोगों के जीवन இந்த में, வாழ்வுடைய கைகளில हम जवानों के हाथों में டேட்டூஸ் என்பதான அந்த காரியங்கள் இருக்க பார்க்க முடிகிறது. वो लोग अपने हाथों में टैटू जैसा बनाकर रखते हैं. பிரைஸ் எல்லாம். हालेलुया. சபைக்கு போகிறவர்கள், कलीसिया में जाने वाले लोग, தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள், परमेश्वर की आराधना करने वाले இந்த लोग, கையினால் ராபோஜனம் எடுக்கிறவர்கள், उसके हाथों से प्रभु भोज लेने वाले लोग, அவருடைய கைகளில उनके हाथ பாருங்க டேட்டூஸ் போன்றதான இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. टैटूज जैसे कार्य को बनाकर रखते हैं. கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கு, परमेश्वर के वचन को அது நேராக எதிராக இருக்கிறது. और उसके विरोधी है. பிரைஸ் எல்லாம். हालेलुया. இது ஆண்டவர் வெறுக்கிறார். परमेश्वर इसे नहीं चाहता அவர் है. என்ன சொல்றாரு? परमेश्वर क्या कहता है? அவைகள் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியா இருக்க கடவது. वो तेरी आंखों के बीच में चिन्ह के समान அதனை रहे. விட்டு விலகாத. उससे तो अलग ना कर. அதன்படி நீ நட. उसके समान तो चल. அதன்படி நீ செயல்படு. उसके समान तो कार्य कर. அப்படி நீ செய்யும் பொழுது ऐसा तो करते समय உன் வீட்டு நிலைகளிலும், तेरे घर के चौखट உன் पर வாசல்களிலும் और तेरे फाटकों அதை पर எழுதுவாயாக. और तू उसे लिख लेगा. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த வீடுகளிலே आपके घरों में எத்தனை வசனங்கள் எனக்கு தெரியாது, कितने वचन है हमें नहीं पता. எத்தனை வசனம் எழுதி எனக்கு தெரியாது. कितने वचन लिखे हैं हमें नहीं पता. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, கர்த்தருடைய வார்த்தையானது परमेश्वर के वचन जो உங்களுடைய है எல்லா தீங்கி இருக்கும், आपकी सारी அது बुराई விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். उसे बुराई करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. முதலாவதாக सबसे पहला தீங்கு எழுந்து குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று बुराई சொன்னார். से परिवार सुरक्षित रहना உங்களுடைய है. तो குடும்பமானது आपकी परिवार जो है கர்த்தருடைய வார்த்தையினால கட்டப்பட்டு இருக்க परमेश्वर வேண்டும். की वचन से वो बांधा जाना है. அந்த வார்த்தையின்படி நடக்க वो வேண்டும். वचन के अनुसार चलना है. அங்க இங்கேயும் சாஞ்சிடக்கூடாது. यहाँ वहाँ डगमगाना नहीं है. அந்த வார்த்தையின்படியே நடக்க उस வேண்டும். वचन के अनुसार ही चलना அப்படி है. நடக்கும் பொழுது ऐसा चलते समय எப்படி யாபேஸ் ஜெபித்தானோ, जिस तरह से आप इस प्रार्थना அவனுக்கு தீங்கு किया, அணுகவில்லையோ, उसको बुराई नहीं அதே आया. போல उसी तरह எந்த से தீங்கும் कोई भी உங்களை बुराई அணுகாது. आपकी ओर नहीं சரி, आएगा. இரண்டாவதாக दूसरा, தீங்கு அணுகாமல் இருக்க बुराई पास न आने ஒரு के लिए, பாதுகாப்பு இருக்கணும்னா सुरक्षा रहने के நம்முடைய लिए வீடு வந்து हमारा घर பரிசுத்தமான வீடாக இருக்க एक வேண்டும். पवित्र घर के समान रहना है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆதியாகமம் उत्पत्ति की पुस्तक 35ஆம் அதிகாரம் 35वां अध्याय 2 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. दूसरा वचन में कहा गया है, அப்பொழுது तब யாக்கோபு याकूब தன் வீட்டாரையும் अपने घराने தன்னோடு கூட இருந்த மற்ற அனைவரை நோக்கி, और अपने साथ रहने वाले अनेकों को देखकर, உங்களிடத்தில் இருக்கிற तुम्हारे पास रहने वाले அந்நிய தேவங்களை விலக்கி போட்டு अन्य देवताओं को फिराकर, உங்களை சுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு आपको शुद्ध कर कर உங்கள் வஸ்திரங்களை மாற்றுங்கள். अपने वस्त्रों को बदल लो. இங்க யாக்கோபு சொல்லுகிறார், यहाँ पर याकूब कहता है, ஒரு காரியத்தை தெளிவாக एक சொல்லுகிறார். कार्य को कहता है, சோதரம், அதாவது தன் வீட்டாரோடு கூட अपने घराने के साथ, தன்னோடு யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ अपने साथ जो भी लोग थे, எல்லாரையும் பார்த்து சொல்றாரு, सबको देखकर कहता है, உங்களிடத்துல இருக்கிற அந்த அந்நிய தெய்வங்களை आपके पास रहने वाले अन्य देवताओं को என்ன செய்யுங்க, நீங்க விலக்கி போடுங்க, उन्हें अलग करो, உங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டுங்க, अपने आप को शुद्ध करो, உங்கள் வஸ்திரங்களை மாற்றுங்கள். अपने वस्त्रों को बदलो. அதாவது யாக்கோபுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு
ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. याकूब को अच्छा एक सोच था। அந்த அந்த குடும்பமானது, परिवार जो है, சோதரம் அந்த ஜனங்களானவர்கள் के लोग जो हैं, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் क्या करना है, ஒரு பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி पवित्रता के साथ जीना है அவன் சொல்லிக் கொடுக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. ऐसा सिखाता है करके हम देखते हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया। சோதரம் பாருங்க, அவர்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது वो लोग इस तरह से करते அங்க समय 35ஆம் அதிகாரம் 35वां अध्याय में அங்க சோதரம் 4 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 4 वचन में कहा गया है, அப்பொழுது அவர்கள் तब वो लोग தங்கள் கையில் இருந்த எல்லா அந்நிய தெய்வங்களையும் अपने पास रहने वाले सारे अन्य देवताओं தங்கள் को காதணிகளையும் अपने काम के कार्यों को யாக்கோபிடத்துல கொண்டு வந்தார்கள். याकूब के पास ले आए। யாக்கோபு याकूब அவைகளை சீகேம் ஊர் அருகே இருந்த கர்வாலி மரத்தின் கீழே புதைத்து போட்டார். उन्हें सीकेम के पास एक वृक्ष के नीचे उन्हें गाड़ दिया। அவர்கள் உடனே கீழ்ப்படிந்தாங்க. तुरंत उन्होंने आज्ञा को माना। யாக்கோபுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தார்கள். याकूब के कार्यों को उन्होंने माना। ஒரு பரிசுத்தமான குடும்பத்துக்கு தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள். एक पवित्र परिवार के लिए अपने आप को उन्होंने सौंपा। சோதரம் இன்று अनेक வீடுகள்ல பாருங்க, अनेक परिवारों को देखिए, சோதரம் அசுத்தமான காரியங்கள், अशुद्ध कार्य, அசுத்தமான புஸ்தகங்கள், अशुद्ध पुस्तकें, சோதரம் மதுபானங்கள், उन जो पीने का कार्य, சிகரெட் கிடக்கிறது, या सिगरेट रहता है, கட்டபிடி இருக்கிறது, छोटा बीड़ी रहता है, சோதரம் இப்படிப்பட்ட குடும்பம் ऐसा प्रकार की परिवार எப்படி இயேசுவை வரவேற்க முடியும்? कैसा यीशु को अपनाएगा? எப்படி இயேசு அந்த குடும்பத்துல அங்க கடந்து வர முடியும்? यीशु कैसे उस परिवार के भीतर आएगा? எப்படி அந்த குடும்பத்துல தேவ பாதுகாப்பு இருக்கும்? कैसा उस परिवार में परमेश्वर की रक्षा சில रहेगा? வீடுகள்ல பாருங்க, कुछ घरों को देखिए, சோதரம் நீங்க டிவி பார்க்கிற பழக்கத்துல அநேகர் இருக்கிறார்கள். टीवी देखने का जो कार्य में रहते हैं, சோதரம் காலையில இருந்து सुबह से लेकर சாயங்காலம் வரைக்குமாக शाम तक அவங்க பழக்கமே சீரியல் பார்க்க வேண்டும். उनकी जो आदत है सीरियल देखना அவங்க है, பழக்கமே படங்களை பார்த்து நாட்களை கடக்க வேண்டும். उनके जो दिन जो है पूरा पिक्चर देखकर அப்போ गुजारते हैं। நம்முடைய குடும்பம், हमारा परिवार, நாம் வசிக்கிற அறை हम रहने वाले जगह சோதரம் பரிசுத்தமாக இருக்க वो வேண்டும். पवित्रता के साथ रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம் சில வீட்ல பாருங்க, कुछ घरों को देखिए, நான் அதாவது நடிகைகளின் படம், जो हीरोइन है उनकी जो पिक्चर நடிகர்களின் படம், या हीरो के फोटो, சோதரம் இதெல்லாம் இருக்கிறது. ये सब लगाते हैं। கையில வைத்திருக்கிற மொபைல்ல கூட हाथ में जो मोबाइल रखे हैं, என்ன ஸ்கிரீன் நம்ம வச்சிருக்கிறோம், जो हमारा स्क्रीन फोटो कौन सा है, எந்த போட்டோ இருக்கிறது, कौन सा फोटो है, எப்படி ஒரு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும்? कैसा हमें सुरक्षा அதுல रहेगा? ஒரு பரிசுத்தம் இல்லையே, उसमें पवित्र नहीं है, அதுல ஒரு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் இல்லையே. उसमें पवित्र परमेश्वर का प्रिय कार्य नहीं இன்னைக்கு है। நம்முடைய கைகளிலே இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து விட்டது. आज हमारे हाथों में सब कुछ आ गया சோதரம் है। நம்முடைய மொபைல்ல பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? हमारे मोबाइल में पवित्रता है क्या? நான் வைத்திருக்கிற காரியங்களுக்கு பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? रखे हुए कार्यों में पवित्रता है நாம் क्या? படுக்கிற அறைகளில் பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? सोने वाले जगह में पवित्रता है क्या? நம்முடைய வீடுகளில் இன்னைக்கு பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? हमारे घर में पवित्रता है क्या? பாருங்க, அநேகர் இன்னைக்கு தூங்க முடியாம இருக்கிறாங்க. अनेक लोग आज सो नहीं पाते யா हैं, கெட்ட சொப்பனங்கள், क्योंकि बुरे सपना, சோதரம் பலவிதான பயமான காரியங்கள், अनेक प्रकार के भय के சோதரம் कार्य, தூங்க முடியவில்லை. वो लोग सो नहीं पाते। பிசாசு அவர்களை பயமுறுத்துகிறான். शैतान उन्हें डराता है, சோதரம் பாவங்களை காண்பிக்கிறான். उन्हें पाप दिखाता है। காரணம் என்ன? कारण क्या है? அந்த குடும்பமானது वो परिवार जो அவர் है, ரத்தத்தால பரிசுத்தமாக்கப்படவில்லை. उनके लहू से पवित्र नहीं किया அந்த गया வீடு है, பரிசுத்தமா वो இருக்கவில்லை. घर पवित्र नहीं किया गया है। வேதம் தெளிவாக எச்சரிக்கிறது, शास्त्र अच्छी तरह से चेतावनी நீ देती है, சாபத்துக்குள்ளாகாதபடிக்கு तो श्राप के अंदर न होते हुए அருவருப்பானதை ये जो बुरे कार्य को உன் வீட்டிலே கொண்டு போகாயாக, तो अपने घर के अंदर न ले जा, அதை சீ என்று வெறுத்து முற்றிலும் அருவருக்க கடவாய். उसे तो तुच्छ जानकर उसे दूर रहे, அது சாபத்துக்குள்ளானது. वो श्रापित உங்க कार्य है। வீட்டுல आपके घर में சாபமான காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது. श्राप के कार्य नहीं रहना है, சாபமான பொருட்கள் இருக்கக்கூடாது. श्राप के चीजें नहीं रहना है, சோதரம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத அந்நிய தெய்வங்கள் இருக்கக்கூடாது. परमेश्वर के प्रिय अप्रिय जो अन्य देवताएं नहीं रहना ஆண்டவர் है, இதை வெறுக்கிறார். परमेश्वर उसे तुच्छ जानता ஒருவேளை है। கணவன் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கலாம், पति उद्धार पाया இல்ல होगा, மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டு या இருக்கலாம். केवल पत्नी उद्धार पाई சில होगी। வீடுகளில कुछ घरों में ஏகப்பட்ட தெய்வங்கள் இருக்கும். अनेक प्रकार की देवताएं அந்த होंगी, தேவ மத்தியில उन देवताओं के बीच இயேசுவை में வைத்திருப்பாங்க. यीशु को भी रखे रहेंगे। இதெல்லாம் சரியான காரியம் அல்ல. ये सब ठीक कार्य नहीं ஆண்டவர் है, இதை வெறுக்கிற காரியங்கள். परमेश्वर इसे तुच्छ जानता அப்படி है। குடும்பங்களை பார்த்து இருக்கிறேன். ऐसे परिवारों को देखे हैं, மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார், पत्नी उद्धार पाए ஆனா रहेंगी, கணவன் ஓட்டுகிறதான சோதரம் அந்த கார்களிலே लेकिन पति चलाने वाले जो गाड़ियों में அந்த அந்நிய தெய்வம் இருக்கிறது. अन्य देवताओं को रखे என்ன रहेंगे। நடக்கிறது? இது क्या होता है? ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை. एक सुरक्षा नहीं இன்னைக்கு है। தீங்கு நம்மளை விட்டு தீங்கிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று आज हमें சொன்னால் बुराई से सुरक्षित रहना நம்முடைய होगा। வீடு பரிசுத்தமா இருக்க हमारा வேண்டும். घर पवित्र रहना है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அந்த பரிசுத்தத்தை ஆண்டவர் वो விரும்புகிறார். पवित्रता को परमेश्वर चाहता है, அப்பொழுதுதான் तब ही நம்முடைய குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும். हमारा घर सुरक्षित நீங்க होगा। 2 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 6वां அந்த अध्याय 15 ல இருந்து 15 வசனம்
வசனம் படிக்கும் பொழுது 15 से 17 तक पढ़ेंगे तो ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார், परमेश्वर ध्यान से कहता है கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது. मसीह के और दूसरे लोगों में क्या अंतर நீங்க है। அந்த காலையில படித்துக் கொண்டு வருவீங்கன்னு उन சொன்னா, कार्यों को पढ़ते आएंगे तो ஆனபடினால் इसलिए நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் आप लोग उनके बीच में से तैयार होकर अलग होकर அசுத்தமானதை தொடாதீன்னு கர்த்தர் अशुद्ध சொல்லுகிறார். कार्य को न छुओ करके இவங்களை परमेश्वर कहता விலகுன்னு சொல்லுதாரு, है। इनसे वो अलग होने के लिए कहता இவங்கள்ட்ட है। போய் சம்பந்தம் வைக்காதன்னு சொல்லுதாரு, इनके साथ तो कुछ न कर करके कहता இவங்கள்ட்ட है। போய் பெண்ணு மாப்பிள்ளை பார்க்காதன்னு சொல்லுதாரு. इनसे अपने बच्चों के लिए दुल्हा दुल्हन न देखो பாருங்க, எவ்வளவு कहता है। பயங்கரமான காரியம், कितना भयंकर कार्य எவ்வளவு है, வேதனையான காரியம். कितनी वेदनाओं की कार्य है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, இன்றைக்கு நம்முடைய வீடு சுத்தமா இருக்கிறதா, आज हमारा घर शुद्ध है क्या, பரிசுத்தமா காணப்படுகிறதா? पवित्रता के साथ है क्या, அப்பொழுது तब ही காணப்படும் பொழுதுதான் ऐसा रहते ஒரு समय தீங்கு நம்மை நெருங்காது. ये बुराई हमारे पास नहीं யாபேஸ் आएगी। ஜெபித்தான் அல்லவா, याबेस ने प्रार्थना தீங்கு किया, என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு कोई बुराई मुझे दुखी என்னை न करते காத்தலும் हुए ஜெபித்த பொழுது मुझे सुरक्षा करो அவன் कहते வேண்டிக் समय கொள்வதை கர்த்தர் செய்தார்னு சொல்லப்பட்டு उसने जो இருக்கிறது. भी मांगा परमेश्वर ने पूरा किया है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு பணமோ आज पैसे பொருளோ या कोई चीज இல்ல நகையோ या धन दौलत நமக்கு நிம்மதிய சந்தோஷத்தை தராது, हमें आनंद और खुशी नहीं देगा, சமாதானத்தை தராது. समाधान नहीं உங்க देगा। வீடானது आपका घर जो है அவருடைய சோதனம் ஆமென் பரிசுத்தமாக ஒரு வீடா இருக்க வேண்டும். पवित्र घर के समान रहना இயேசு है। சொல்ல இருக்கிறார், यीशु ने कहा நான் பரிசுத்த, मैं पवित्र, ஆகையால் நீங்களும் इसलिए பரிசுத்தராயிருங்கள். तुम भी पवित्र बनो। ஆண்டவர் பரிசுத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर पवित्रता को चाहता உங்க है। குடும்பம் பரிசுத்தமான குடும்பமா இருக்க வேண்டும். आपका परिवार पवित्र परिवार रहना है। நீதிபாடு கூடாரங்களிலே गर्मी के तंबुओं में இரட்சிப்பின் கெம்பீர சத்தம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उद्धार की आवाज गूंजनी है இன்னைக்கு कहता இரட்சிப்பின் है। கெம்பீர சத்தம் இருக்கிறதா? आज आपके घरों में उद्धार की இல்ல आवाज है சண்டை क्या? போடுகிற சத்தம் या இருக்கிறதா? फिर झगड़ा की आवाज आती இல்ல है, குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லாத இந்த சூழ்நிலை या இருக்கிறதா? फिर परिवार में समाधान की बिना இன்றைக்கு रहते ஆண்டவர் हो। சொல்லுகிறார், आज परमेश्वर உங்களுடைய कहता है வீடானது आपका घर பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். पवित्रता के साथ உங்க रहना है। வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள், आपकी जुबान से आने वाली कार्य, பேசுகிற வார்த்தைகள் बोलने वाले कार्य அது எவ்வாறாக वो புறப்படுகிறது? किस तरह से आती है। வேதத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा गया है, கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். गंदी गाली कोई भी तेरे जुबान சோத்திரம், से नहीं நல்ல निकलना है। வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். केवल अच्छे कार्य बोलना சோத்திரம், है, பரிசுத்தமான வார்த்தைகளை பேச केवल வேண்டும். पवित्र कार्य को बोलना है, தேவனுக்கு பிரியமுள்ள வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். परमेश्वर के प्रिय कार्य को உங்கள் बोलना है, பிள்ளைகளை உயர்த்துகிற வார்த்தைகளை பேச आपके வேண்டும். बच्चों को उत्साह करने वाले बातें இந்த बोलना குடும்பத்திலே है। आज परिवारों में பரிசுத்தத்தை பார்க்க முடியவில்லை, पवित्रता को नहीं देख அவருடைய पाते। வாழ்க்கையில பரிசுத்தத்தை பார்க்க आज முடியவில்லை. उनके घरों में पवित्रता नहीं है, நடையில பரிசுத்தம் இல்லை, उनकी चाल चलन में पवित्र नहीं பார்வையில है, பரிசுத்தம் இல்லை, नजर में पवित्र नहीं உடைகளிலே है, பரிசுத்தம் இல்லை. कपड़ों में पवित्रता நம்முடைய नहीं है। பிள்ளைகளுக்கு हमारे बच्चों को எப்படிப்பட்டதான உடைகளை வாங்கி किस तरह கொடுக்கிறோம், से कपड़े दिलाते அவர்கள் हैं, எப்படி நம்ம வளர்க்கிறோம், उन्हें किस तरह से बड़ा करते கர்த்தர் हैं। விரும்புகிறதான அந்த விதமான அந்த வாழ்க்கை இருக்கிறதா? परमेश्वर चाहने वाला कार्य है क्या, ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற வாழ்க்கை இருக்கிறதா? परमेश्वर चाहने वाली चीजें हैं இன்றைக்கு क्या। நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க आज हमें வேண்டும். थोड़ा सोच कर देखना தீங்கிலிருந்து है, பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று बुराई से சொன்னால் सुरक्षित रहना है நம்முடைய तो குடும்பமானது हमारी परिवार சோத்திரம் அவருடையதான சோத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும். उसमें पवित्रता के साथ रहना है। ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर वही चाहता है, எந்த தீங்கு நம்மளை அணுகாது. कोई भी बुराई हमारे पास नहीं आएगा। Praise the Lord. हालेलुया। நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்து விடக்கூடாது. हमारी स्थिति के अनुसार हमारे जीवन नहीं बदलना है। இந்த ஃபேஷன் வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்து விடக்கூடாது. एक फैशनेबल जीवन में हमें नहीं आ जाना அவர்கள் है। வாழ்கிறார்களே, वो लोग जीते हैं, நானும் வாழ வேண்டுமே. हमें भी जीना है। எந்த வாழ்க்கை அல்ல, ऐसा जीवन नहीं இரு है, வாழ்க்கை அல்ல, दो प्रकार के जीवन, மாய்மாலமான வாழ்க்கை அல்ல, एक माया के जीवन ஒரு में नहीं है, பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை. एक पवित्रता की நான் जीवन। இப்படி இருக்கவில்லை என்று हम इस சொன்னால், तरह से नहीं रहेंगे நான் तो இப்படி வாழவில்லை என்று சொன்னால் ऐसे नहीं जिएंगे என்ன அவர்கள் வெறுப்பார்களே, हमसे वो तुच्छ जानेंगे, என்ன அவர்கள் கண்டுகொள்ள மாட்டார்களே वो हमसे नहीं देखेंगे। என்று தானே யோசிக்கிறீர்கள். ऐसा ही सोचते हैं ना। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, கர்த்தர் வெறுக்கிறதை, परमेश्वर ना चाहने கர்த்தர் वालों को, விரும்பாததை परमेश्वर जिस कार्य को नहीं ஒருவரும் चाहता है, செய்யக்கூடாது. कभी भी हमें नहीं करना है। ஹalleluya. हालेलुया। பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை நாம் அமைத்துக் கொள்ள एक வேண்டும். पवित्र जीवन को हमें நம்முடைய कैसे करना குடும்பம் है। பரிசுத்தமா இருக்க हमारा வேண்டும். परिवार पवित्रता के நம்முடைய साथ சபை रहना है। பரிசுத்தமா இருக்க अपनी வேண்டும். कलीसिया पवित्रता के நம்முடைய साथ இருதயம் रहना है। பரிசுத்தமா இருக்க हमारा வேண்டும். हृदय पवित्रता के साथ நம்முடைய रहना है। சரீரம் பரிசுத்தமா இருக்க हमारा வேண்டும். शरीर पवित्रता के साथ ஒருவன் இந்த रहना है। சரீரத்தை கெடுத்தால், कोई इस शरीर को இந்த बिगाड़ेगा சரீரம் तो, ஆலயத்தை या கெடுத்தால், हमारे कलीसिया को बिगाड़ेगा கர்த்தர் तो அவனை கெடுப்பான்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. परमेश्वर भी उसे बिगाड़ेगा करके कहा எப்படி गया உங்களுடைய है। சரீரம் இருக்கிறது? आज आपके शरीर कैसी உங்களுடைய है, ஆலயம் எப்படி இருக்கிறது? आपकी कलीसिया உங்களுடைய कैसी குடும்பம் है, எப்படி இருக்கிறது? आपके परिवार कैसा है, யோசித்து जरा பார்க்கலாம். सोच कर देखेंगे। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। குடும்பம் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். परिवार पवित्रता के साथ रहना அப்பொழுது है, தீங்கு கத்தை விலை பாதுகாத்துக் கொள்வார். अभी परमेश्वर बुराई से மூன்றாவதா பார்க்கும் பொழுது तीसरा हम देखेंगे உங்க குடும்பம் எப்படி இருக்கணும்னா, आपका परिवार कैसा रहना है। இயேசுவின் இரத்த கோட்டைக்குள்ள பாதுகாப்பு இருக்கணும். यीशु का लहू के अंदर हमें सुरक्षित அதுக்கு रहना என்ன है। அர்த்தம்னா, उसका अर्थ क्या உங்க है, வீடு
முழுவதுமாக आपके बच्चों के चारों அவருடைய ओर இரத்த கோட்டைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का लहू का छिड़का हुआ उसके अंदर रहना है। யாத்திராகமும் जो निर्गमन की पुस्तक 12ஆம் அதிகாரம் 12वां अध्याय 13 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 13 में कहा गया है, நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் आप लोग रहने वाले घरों में அந்த அந்த ரத்தம் உங்களுக்குள்ளாக அடையாளமா இருக்கும்படிக்கு वो लहू आपके लिए चिन्ह बनकर रहने के அந்த लिए அந்த ரத்தத்தை கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். वो लहू को देखकर मैं तुम्हें पार कर நான் जाऊंगा। எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள் வராது मैं இருக்கும். मिस्र देश को नाश करने वाले कार्य को तुम में नहीं என்ன लाऊंगा। வராது இருக்குமா? क्या नहीं लाएगा? எகிப்து தேசத ஜனங்களை அழிக்கும் வாதை வராது. मिस्र देश को नाश करने वाली विपत्तियां तुम्हारे அப்ப ऊपर உங்க नहीं आएगी। குடும்பமானது तो परिवार जो है சோதரம் அவருடைய ரத்தத்தினால சோதரம் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்க उनके வேண்டும். लहू से सुरक्षित किए जाना है। இப்போ பாருங்க, இந்த கொரோனா வியாதினால कोरोना की बीमारी जो எத்தனையோ है, பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. कितने लोग इसमें पीड़ित है। தீங்கு இன்னைக்கு பரவி கொண்டு இருக்கிறது. बुराई आज फैल रही है, இன்னைக்கு தீமைகள் வந்து கொண்டு आज இருக்கிறது. बुराइयां आ रही है। அப்ப இதுல இருந்து பாதுகாப்பு வேணும்னா इससे अगर सुरक्षित रहना है, நம்முடைய குடும்பமானது हमारा परिवार இயேசுவின் இரத்தத்தால பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்க यीशु के வேண்டும். लहू से सुरक्षित रहना है। பழைய ஏற்பாட்டுல पुराने नियम में இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इस्राएल के लोग வீடுகளில் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் நிலைக்கால பூசப்பட்ட போது घर के ऊपर जो मेमने की जो फेस्टिवल थी तब जो लगाए थे, அந்த சங்கார தூதன், वो जो दूध जो आया था, அது அழிக்கிற தூதன் उसको नाश करने वाला दूध சோதரம் அங்க உள்ள போக முடியல. वहाँ अंदर नहीं जा पाया। எந்தெந்த வீட்ல जिस घर में அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் தெளிக்கப்படவில்லை, वो फसह का पर्व में जो लगाया गया था, அந்த கொள்ளையினர்களை தாக்கினது. वो महामारी उनके ऊपर आ गई। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த வியாதி அவர்களை वो தாக்கினது. बीमारी उनके ऊपर आ गई। அப்ப தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का सुरक्षा रहना है। அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியோட ரத்தத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு சோதராங்க பிடிக்கும் பொழுது तो पस्का का पर्व में जो इजरायली लोग मेमने का लहू लगाते அங்க समय ஈசோப்பை தண்டினாலே தங்கள் வீடுகளை பூசினார்கள். यूसुफ के उस कार्य से अपने घर के ऊपर उस लहू को लगाया। ஈசோப்பை தண்டு என்று எது குறிக்கிறது சொன்னால் यूसुफ का उस कार्य किसे बतलाता அது है? விசுவாச அறிக்கையை वो குறிக்கிறது. विश्वास की को जताना उसको बतलाता அப்ப है। இயேசுவின் ரத்தம் तो यीशु का लहू, ஜெயம் என்று சொல்லிக்கொண்டு यीशु की लहू की जय நம்முடைய बोलते வீடுகளில் அந்த ரத்தத்தை தெளிக்க हमारे வேண்டும். घरों में उस लहू को छिड़कना है। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவின் ரத்தத்தின் வெளியே நமக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது ஒருபோதும். यीशु के लहू के अलावा हमें सुरक्षा नहीं है। இயேசுவின் ரத்தத்திலே சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும். यीशु के लहू से ही हम शैतान को जीत पाएंगे। தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். बुराई से हमें सुरक्षित रहना हो तो இயேசுவின் ரத்தம் நம்முடைய வீட்ல பாதுகாப்பு இருக்க यीशु வேண்டும். का लहू हमारे घर में सुरक्षित உங்கள்ட்ட रहना அந்த है। பாதுகாப்பு இருக்குதா? आपके घर में सुरक्षा है உங்க क्या? குடும்பம் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டு இருக்கிறதா? आपका परिवार उस लहू से शुद्ध है क्या? ரத்தத்தால பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு उस இருக்கிறதா? लहू से पवित्र किए गए அந்த हैं क्या? ரத்தத்தால உங்க வீட்ல பாதுகாப்பு இருக்குதா? उस लहू से आपके घर में सुरक्षा है क्या? எந்த வாதை कोई भी बीमारी அது உங்க வாசல் பக்கம் தான் போகுமே தவிர वो आपके द्वार से जाएगा, உங்க வீட்டுக்குள்ளாக வராது. आपके घर के भीतर नहीं ஹalleluya. आएगा। हालेलुया। எந்த தீங்கு நெருங்காது. कोई भी बीमारी नहीं என்று आएगा। சொன்னால் क्यों? இயேசுவின் ரத்தத்தால அது பாதுகாப்பாக வீடா இருக்கும் பொழுது. यीशु के लहू से वो सुरक्षित किया गया हुआ घर रहता है। ஹalleluya. हालेलुया। சரி, கடைசியாக अंत में எந்த தீங்கு நம்ம வரவில்லை என்று சொன்னால் कोई भी बीमारी नहीं आना है என்ன तो செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் क्या करना है? நல்ல ஜெபம் பண்ண अच्छी வேண்டும். तरह से प्रार्थना करना है। ஒருவரை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. शास्त्र में कहा गया है, அப்போஸ்தலர் प्रेरितों की पुस्तक 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय அது 2 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसमें दूसरा अध्याय में कहा गया है, கொர்நேலியு குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. कोर्नेलियुस के बारे में कहा गया அவன் है, தேவ பக்தி वो உள்ளவனும் परमेश्वर का भक्ति தன் வீட்டார் அனைவரோடு கூட தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்து और अपने घराने के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தான தர்மங்களை செய்து लोगों के लिए बहुत सारा दान धर्म करते हुए எப்பொழுதும் हमेशा தேவன் நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார். परमेश्वर की और उसने प्रार्थना किया। ஹalleluya. हालेलुया। உங்க வீட்ல தீங்கு வரக்கூடாது என்று சொன்னால், आपके घर में अगर बुराई नहीं அது आना ஒரு है, பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று சொன்னால், सुरक्षा आना है உங்க तो வீடானது आपका घर கொர்நேலியின் குடும்பமாக மாற வேண்டும். कोर्नेलियुस की परिवार के समान வீட்டின் बदलना है। தலைவர்கள் घर के बड़े लोग ஒவ்வொரு பேரும் हर एक जन கொர்நேலாக மாறணும். कोर्नेलियुस के समान बदलना है। ஹalleluya. हालेलुया। கொர்நேலியுவாக மாறும் பொழுதுதான் कोर्नेलियुस के समान बदलते அங்க ஒரு समय பாதுகாப்பு இருக்கும். वहाँ पर सुरक्षा பாருங்க, होगा। எப்பொழுதும் हमेशा அவன் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. परमेश्वर की और उसने प्रार्थना किया करके அதாவது कहा गया है। தீங்கு வருவதற்கு முன்பதாக बुराई आने से पहले ஜெபம் என்கிறதானது வேலையை நம்ம ஒரு நாள் போட வேண்டும். प्रार्थना की जो एक बाउंड्री हमें लगाना है। ஜெபத்தில் எப்பொழுதும் நம்ம தரித்திருக்க வேண்டும். प्रार्थना में हमेशा हमें स्थिर रहना நம்முடைய है। வீட்டில் நம்முடைய குடும்பத்துல குடும்ப ஜெபம் நிச்சயமாக இருக்க हमारे வேண்டும். घरों में पवित्र की प्रार्थना हमेशा रहना है। எத்தனை வீட்டுல குடும்ப ஜெபம் இல்லைன்னு தெரியாது. जितने घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, அதை नहीं கர்த்தர் पता, அறிவார். परमेश्वर जानता है। நம்முடைய வீடானது हमारा
घर जो है கொர்நேலு குடும்பத்தை போல कोर्नेलियुस की परिवार के समान எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற ஒரு குடும்பமாக மாற வேண்டும். हमेशा प्रार्थना करने वाला परिवार के समान रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। தேசத்திற்காக, देश के लिए, அழிந்து வரும் ஆத்துமாக்களுக்காக, नाश होने वाले लोगों के लिए, சபைகளுக்காக, कलीसियाओं के लिए, ஊழியங்களுக்காக, सेवकों के लिए, தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக, देश की रिहाई के लिए, ஜனங்கள் ரட்சிப்புக்காக लोगों की उद्धार के ஒரு लिए ஜெபிக்கிற குடும்பமாக प्रार्थना करने वाला कार्य। நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது हम प्रार्थना करते समय பாருங்க, देखिए நம்முடைய வீட்ல ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு இருக்கும். हमारे घर में एक बड़ी सुरक्षा रहेगा, எந்த தீங்கும் இருக்காது, कोई भी बुराई नहीं आएगी, எந்த தீங்கும் தொட कोई முடியாது. भी बुराई नहीं छू पाएगी। எப்படியாக யாபேசுடையதான சோதரம் குடும்பத்தை जिस तरह से याबेस की परिवार அவருடைய அவனை उसे தீங்கானவ பாதுகாத்தது போல बुराई न आते हुए जैसा बचाया, இன்றைக்கும் आज भी கர்த்தர் அவண்ணமாகவே परमेश्वर उसी तरह से உங்க குடும்பத்தை அவர் आपके பாதுகாப்பார். परिवारों की रक्षा 3-4 காரியத்தை பார்த்தோம். 3-4 कार्यों को हमने देखा। முதலாவதாக सबसे पहला நம்முடைய குடும்பம் தீமையிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று हमारा சொன்னார். परिवार बुराई से बचाना வேத जाना है। வசனத்தினால கட்டப்பட்ட குடும்பம் இருக்க परमेश्वर வேண்டும். के वचन से बांधा गया हुआ परिवार रहना है। இரண்டாவதாக दूसरा பரிசுத்தமான ஒரு வீடா இருக்க வேண்டும். पवित्र परिवार रहना है। மூன்றாவதாக तीसरा இயேசுவின் இரத்தத்தால பாதுகாக்கப்பட்ட வீடா இருக்க यीशु வேண்டும். के लहू से शुद्ध किया हुआ परिवार रहना கடைசியாக है। अंत में எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு குடும்பமாக இருக்க வேண்டும். हमेशा प्रार्थना करने वाला एक परिवार அப்படி रहना இருக்கும் है। பொழுது ऐसा रहते समय கர்த்தர் உங்களையும் परमेश्वर आपको, உங்க குடும்பங்களையும் आपके परिवारों को, உங்க பிள்ளைகளையும் आपके बच्चों को நிச்சயமாகவே निश्चय ही எல்லா தீங்கிலிருந்தும் सारे बुराइयों से அவர் உங்களை விடுவித்து वो பாதுகாத்துக் आपको கொள்ளுவார். छुड़ाएगा। யாபேசை போல ஜெபிங்க. याबेस के समान प्रार्थना யாபேசின் कीजिए। ஜெபத்தை கேட்டு याबेस की प्रार्थना को அவன் सुनकर எதெல்லாம் வேண்டிக் கொண்டானோ वो जो कुछ मांगा அது எல்லாவற்றையும் वो सब कुछ கர்த்தர் அவனுக்கு அருளினார். परमेश्वर ने उसे पूरा किया। உங்களுக்கு அப்படியே செய்வாராக. आपके जीवन में भी पूरा நாம் करेगा। தலைகளை வணங்கி हम सर झुकाकर தேவ நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। கர்த்தர் நம்மோடு இன்றைக்கு அவர் பேசுகிறார். परमेश्वर ने आज हमसे बातें की। தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு कोई बुराई मेरे और ना आपते என்னை हुए காத்தள்ளும் என்று சொல்லி मुझे सुरक्षा कीजिए करके। யாபேசை ஜெபித்தான். तो याबेस ने प्रार्थना किया। யாபேஸ் எதை ஜெபித்தானோ याबेस ने जिस तरह से கர்த்தரை प्रार्थना किया, வேண்டிக் கொள்ளுதலை நிறைவேற்றினார். परमेश्वर ने उसकी विनतियों को पूरा किया। இன்றைக்கும் आज நீ எந்த காரியத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டு आप लोग இருக்கிறீர்களோ जिस कार्यों के लिए प्रार्थना कर அந்த रहे हो, காரியத்துல उन सारे कार्यों को ஆண்டவர் நிச்சயமாக நிறைவேற்றும் தருவார். परमेश्वर निश्चय पूरा करके உங்களுக்கு ஒரு देगा। அற்புதம் செய்வார். आपके जीवन में अद्भुत कार्य எல்லா करेगा। தீங்கிலிருந்தும் आपको सारे बुराइयों அவருக்கு से விலக்கி அவர் பாதுகாத்துக் वो கொள்ளுவார். आपको छुड़ाएगा। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்த அன்பும் நிறைந்த நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रेम से भरे हुए परमेश्वर आपको धन्यवाद। இந்த அருமையான வேளைக்காக நாம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். हम इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते எங்களோடு हैं। நீர் பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. हमसे आपने बातें की हैं। ஆண்டவரே தீங்குகள் இருந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். बुराई से भरे हुए संसार में हम जीते கொள்ளை हैं। நோய்கள் நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். महामारी से भरे हुए संसार में அநேக जीते हैं। குடும்பங்கள் இந்த கொள்ளையினால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதப்பா. अनेक परिवार इस महामारी से पीड़ित இந்த हैं। தீங்கினால ஜனங்கள் இன்னைக்கு கவலையோடு இருக்கிறாங்க इस ஆண்டவரே. बुराई के निमित्त अनेक लोग चिंतित அவர்களை हैं। விடுவிக்கும்படியாக उन्हें செபிக்கிறேன். छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते இதை हैं। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்துக்காக इसे செபிக்கிறேன். सुनने वाले हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना இவருடைய करते हैं। குடும்பமானது हमारा परिवार உம்முடையதான வசனத்தினால கட்டப்பட்ட குடும்பம் மாற்றும்படியாக செபிக்கிறேன். आपके वचन के अनुसार चलाने के लिए हम प्रार्थना ஒரு करते हैं। பரிசுத்தமான குடும்பம் மாற்றும்படியாக செபிக்கிறேன். पवित्र परिवार के बनने के लिए हम அவங்க प्रार्थना करते வீடுகளில हैं। उनके घरों में வேண்டாத பொருட்கள், बुराई जो कार्य, அசுத்தமான பொருட்கள், अशुद्ध चीजें, அசுத்தமான காரியங்கள் अशुद्ध कार्य, இயேசுவின் நாமத்தினால, यीशु मसीह के नाम से அசுத்தமான படங்கள், अशुद्ध जो चित्र, எல்லா விதமான காரியங்களும், ये सारे कार्य, பொல்லாத காரியங்கள் बुराई के कार्य எல்லாம் குடும்பத்தை விட்டு மாற்றும்படியாக सब कुछ செபிக்கிறேன். परिवार से हटने के लिए ஆண்டவரே प्रार्थना करते हैं। குடிகார கணவர் ரட்சித்துக் கொடுங்க. पिए कर पति को उधार दीजिए। குடிக்கிற பிள்ளை ரட்சித்துக் கொடுங்க. पीने वाले बच्चों को उधार யாரெல்லாம் दीजिए। சிகரெட் குடிக்கிறாங்களோ, जो भी लोग सिगरेट पीते हैं, யாரெல்லாம் பீடி இந்த போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்களோ, जो भी लोग नशे में அது अधीन है, விடுதலை கொடுங்க ஐயா. उन्हें छुटकारा அந்த दीजिए। பாவத்திலிருந்து விடுதலை उस கொடுங்க. पाप से उन्हें அவங்க बचाइए। குடும்பம் பரிசுத்தமா இருக்கட்டும். उनका परिवार पवित्रता से அது रहे। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, அது கூட இயேசு ரத்தத்தால பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் यीशु के ஆண்டவரே. लहू से उन्हें शुद्ध कीजिए। அது மாத்த ஜெபிக்கிறோம் மாற்றும்படியாக उन्हें செபிக்கிறேன். प्रार्थना करने वालों में रूप में எல்லாரையும் बनाइए। ஆசீர்வதிங்க. सबको आशीष அவங்க कीजिए। செய்கிற வேலையை ஆசீர்வதிங்க. करने वाले काम को आशीष தொழில் कीजिए। ஆசீர்வதிங்க. धंधे को आशीष அவங்க कीजिए। தேவையை சந்தித்து கொடுங்க. जरूरतों को पूरा कीजिए। அற்புதமாக போஷிங்க. अद्भुत रीति से ஒரு चलाइए। குறை இருக்க கூடாது. कोई भी कमी ना रहे। சோதரன் உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். हाथ अपने हाथ के प्रयास को खाएगा। உனக்கு பாக்கிய நன்மை உண்டாயிருக்கும் என்ற जब வசனத்தின்படியாக भलाई और अच्छाई होगा உன்னுடைய तो பிள்ளைகளுக்கு பாக்கியம் உண்டாயிருக்கும்படியாக आपके செபிக்கிறேன். बच्चों के जीवन में भलाई होने के लिए அவங்க प्रार्थना करते பணங்களில் हैं। उनके पैसों ஒரு में விருத்தி உண்டாகட்டும். बढ़ोतरी होने दो। குறைவு இருக்க கூடாது. कोई भी कमी ना रहे। இறைவன் ஆசீர்வாதம் தங்கும்படியாக செபிக்கிறேன். निरयता के साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते தேவைகளுக்கு தேவையை சந்தித்து கொடுங்க. हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करके दीजिए। அற்புதங்களை செய்யுங்க. अद्भुत काम कीजिए। சபைகள் திறக்கப்படட்டும். कलीसियाएं खुलने दो। மகாராஷ்டிரால சபை திறக்கப்படட்டும். महाराष्ट्र
भाषा में कलीसियाएं खुलने दो, எழுப்புதல் வரட்டும். बड़ी रिहाई आने दो, தேசத்தை ரட்சித்து தாங்க ஐயா. देश में उद्धार करके பெரிய दीजिए। நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக आपके செபிக்கிறேன். बड़े नाम की महिमा हो। எந்த தீங்கு பிழையை தொடக்கூடாது. कोई भी बुराई आपके बच्चों को न அப்படி छुए। செய்ததற்கு உமக்கு आप ஸ்தோத்திரம். ऐसे किया धन्यवाद। இயேசு மூலம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मानते पिता, ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஏ மேரே मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर. ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने किए उस सारों का को कभी ना बोलना. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தர் இயேசுவுடைய கிருபையும் हमारे यीशु का अनुग्रह, பிதாவுடைய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ, உலகத்தில் பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के हर एक पवित्र लोग के எல்லா साथ, சபையோடு கூட सारे कलीसियाओं के साथ, ஆண்டு வருகை மட்டும் परमेश्वर के आगमन तक என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம்.